આદરણીય બ્રહ્મકુમારી શિવાની દીદી માં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અમારા યંગ તથા ખૂબ જ ધાર્મિક વૃત્તિ ધરાવનાર અમારા પ્રેસિડેન્ટ શ્રી અક્ષયભાઈ મહેતા અને અમારી પૂરી ટીમ આપ સર્વેને હૃદયપૂર્વક આવકારે છે. વેલકમ શિવાની दीदी, प्रणाम, ओम शांति. ओम शांति जी, बहुत बहुत शुक्रिया. हमारी उपनगर लाड संस्था तथा यहाँ उपस्थित सभी श्रोताजनों की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ. मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मानसिक संघर्ष, कहते हैं ना कि जब हमारे इच्छा के विपरीत कोई कार्य होता है या हमारे निश्चित किए हुए कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, तभी हमें मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है. हमारा मन है ना बड़ा चंचल है, परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, बट साथ में आवर माइंड इज अ सुपर इंस्ट्रूमेंट इफ वी यूज करेक्टली. हमारे मन को हम चाहे ऐसा यूज कर सकते हैं. शांत मन की स्थिति बहुत शक्तिशाली होती है, इसीलिए कहते हैं संकल्प से सिद्धि है. हम जो चाहते हैं वो थॉट हम क्रिएट कर सकते हैं, वो चीज हम प्राप्त भी कर सकते हैं. हमारे जीवन में हमें खुशी बढ़ानी है, संतोष लाना है, और इसीलिए आज हमारे साथ उपस्थित पूजनीय शिवानी दीदी आज हमें बहुत सारी टिप्स देने वाले हैं. उनके सुंदर विचार और प्रभावशाली प्रवचन से बहुत सारे श्रोताजनों के जीवन में बहुत सुखकारी परिवर्तन आया है और यह उनकी बहुत बड़ी सिद्धि है. तो ऐसे वंदनीय शिवानी दीदी को सुनने के लिए जो आज हमें सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं आप सभी से अनुरोध करेगी कि आप ये अवसर को पकड़ लीजिए और हमारे जीवन को उत्तम बनाने की कोशिश करो. तो वापस फिर से एक बार शिवानी दीदी आपका स्वागत, और हमारे प्रमुख श्री अक्षय भाई मेहता को मैं आगे की कार्यवाही करने के लिए अनुरोध करती हूँ. ओम शांति. धन्यवाद. थैंक यू नीलाबेन. दीपक થતું નથી અનમ્યુટ. Akshay, you are audible. Go ahead. Oh, audible. Okay, fine. Thank you Neelaben. From two instruments. Yeah, two instruments. Yeah, because my laptop is audio is not working. Yeah, anyway, but you are audible. Please fine, go ahead. fine. Okay, fine. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ શાંતિ. થેન્ક યુ નીલાબેન. તમે બહુ ડિટેલમાં બધી ટૂંકમાં અને બહુ સારી વાત કરી દીધી છે, એટલે મારે બહુ જાજુ બોલવાનું રહેતું નથી આમ તો હવે, તે છતાં બી હું કોશિશ કરીશ કંઈક બોલવાની. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ શાંતિ સર્વેને. આ 6th વર્ચ્યુઅલ પ્રોગ્રામમાં આપ સર્વનું સ્વાગત છે. બ્રહ્મકુમારી એ આધ્યાત્મિક સંસ્થા છે જેની સ્થાપના 1930 હૈદરાબાદમાં થઈ હતી, અને આજે 8000થી વધુ સેન્ટરો ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડમાં સેવા આપે છે. બ્રહ્મકુમારી એટલે ડોટર ઓફ બ્રહ્માસ. બ્રહ્મકુમારી સાથે જોડાયેલા સર્વ ને ઓમ શાંતિ કરીને એકબીજાને શુભેચ્છા પાઠવે છે. ઓમ શાંતિ એટલે મારો ધર્મ શાંતિ છે. આધ્યાત્મિક પવિત્ર દિવસોમાં બ્રહ્મકુમારી શિવાની સિસ્ટર દ્વારા આપણે મનમાં આવતો મતભેદ પર કેવી રીતે અંકુશ લાવી શકીએ એ વિશે આપણે આજે માણશું. અને ફાઇનલી આઈ વુડ થેન્ક્સ કૃતિબેન અને શિલ્પા જેને કોર્ડિનેટ કરીને શિવાની દીદીને આજનો કાર્યક્રમ માટે ખાસ એમને આમંત્રણ કર્યા છે. તો થેન્ક યુ કુંતીબેન અને શિલ્પાને. હવે ફર્ધર જસ્ટ આગામી કાર્યક્રમ ઓક્ટોબરમાં હું જરા જણાવી દઉં કે આપણા જે 11મી ઓક્ટોબરે એટલે નેક્સ્ટ સન્ડે પૂજ્ય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈનું પ્રવચન છે મોર્નિંગના. પછી 18મી ઓક્ટોબર આપણે વૈદિક મેથ્સનો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે ઇવનિંગના. અને શરદ ઉત્સવનો જે આપણે આતુરતાથી જે નવરાત્રિની જોઈ રહ્યા છે, રાહ જોઈ રહ્યા છે, તે હવે એકચ્યુઅલી આ વિડીયો માટે ઘણાના આવી ગયા છે, તો એટલીસ્ટ બધાને વિનંતી કે જરા કાલ લગીનમાં મોકલાવી દે, તો આપણે જે પ્રમાણે જરા પ્લાનિંગ કરીને વી કેન પ્લાન ઇટ આઉટ. મે બી એવું લાગે છે કે આપણે 2 દિવસ કદાચ કરવું પડશે. લેટ્સ સી. આ સાથે હું મયુરીબેનને કહીશ કે શિવાની દીદીનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપે. થેન્ક યુ. ઓમ શાંતિ સર્વને. મયુરીબેન, દીપક મયુરીબેન ને
I have already given her permission to unmute herself. Okay. Mayuri. દીપક મયુરીબેન નું અનમ્યુટ નથી. Unmute. હોસ્ટ has blocked એવું વાંચે છે. Okay. Ask her to try her again. Try again. Okay. Yeah. Unmute. ओम शांति. शिवानी दीदी प्रणाम. शांति. आपका परिचय देने के लिए बहुत छोटी हूँ, फिर भी छोटे से मैं परिचय दे दूंगी. ओम शांति. आज शिवानी दीदी का परिचय देने के लिए मुझे जो मौका दिया गया है, इसके लिए मैं उपनगर लाड संस्था की आभारी हूँ. शिवानी दीदी के बारे में यह कहूंगी कि ओम शांति कहकर मुस्कुराती, ओम शांति कहकर मुस्कुराती, न देखी जाती और पाती. शिवानी दीदी है सबको समझाती, भगवान है हमारा साथी. उनका सम्मान करते हुए मैं यह कहूंगी, बहुत खुशी है हमें, बहुत खुशी है हमें जिसके सम्मान की, जिनके मुख से धारा बहती है सदा वरदान की, जिन पर हर सेकंड नजर रहती है भगवान की, ऐसी प्यारी है हमारी दीदी शिवानी जी. ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी का पूरा नाम शिवानी वर्मा है. उनका जन्म 1972 में पुणे शहर में हुआ था. उनको शिवानी दीदी भी कहकर पुकारा जाता है. वह एक राजयोग ध्यान की शिक्षक है जो 1996 से ब्रह्म कुमारी विश्व आध्यात्मिक संगठन के शिक्षा केंद्र से जुड़ी हुई है. आध्यात्मिक चेतना को सशक्त बनाने में उनकी उत्कृष्टता के लिए उन्हें 2014 में एसोचैम की महिला लीग द्वारा डेडिकेट अचीवर्स अवार्ड की महिला से सम्मानित किया गया था. 2017 में उनको विश्व साइकोट्रिक एसोसिएशन द्वारा एक सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है. 2007 में पहली बार टेलीविजन प्रसारण वाला उनका व्यापक रूप से लोकप्रिय टीवी शो अवेकनिंग विथ ब्रह्मा कुमारीज 1000 एपिसोड पूरा कर चुका है. स्व परिवर्तन पर आधारित यह शो विभिन्न तार्किक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था, जैसे अत्यंत खुशी, भीतर से घाव भरना, स्व प्रबंधन, भावनात्मक ज्ञान, प्यार, शक्ति, ईश्वरीय, जीवित मूल्य, रिश्ते, अवसाद और व्यसन, जैसा कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू द्वारा सिखाया जाता है. इसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान वह प्रदान करती है. ब्रह्म कुमारी शिवानी जी अपने आध्यात्मिक विचारों के माध्यम से 1 दशक से भी अधिक समय से विश्व में व्यक्तिगत रूप से भारत, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, अफ्रीका और एशिया के लोगों के मन की चिंता और तनाव, गंदी आदतें, नाखुश रिश्ते और आत्मसम्मान से जुड़ी मुश्किलों को सुलझाने में बहुत रूप से व्यापक है और सभी को मदद की है. यह पूरे विश्व में 20 से अधिक देशों की यात्रा कर चुकी है और लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ले आई हैं. ब्रह्म कुमारी शिवानी ने 2000 से अधिक वार्ताएं वितरित की है, जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रमों, इंटरैक्टिव वर्कशॉप, रिट्रीट्स, सेमिनार, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, ब्लॉग, रेडियो, टेलीविजन शो जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना ज्ञान साझा किया है. इस छोटे से परिचय के बाद अंत में इतना ही कहूंगी, शिवानी जी, आपका शस्त्र है आपकी बोली, आपका शस्त्र है आपकी बोली, इसलिए खिलाते हो आप सबको ज्ञान की गोली.
इसलिए खिलाते हो आप सबको ज्ञान की गोली। मूर्छित भी सुरजित हो जाए खाकर इस ज्ञान की गोली। शिवानी जी आपका शस्त्र है आपकी बोली। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। Well said. ओम शांति। बहुत सुंदर सुंदर बातें सुनी, अपने मन के बारे में, अपने कर्म के बारे में। और बहन ने बहुत प्यार से कहा कि मन तो हमारा परिस्थितियों पर निर्भर है और हम चाहते हैं कि जो कुछ हो बाहर वो हमारे अनुसार होना चाहिए। और अगर हम चेक करें कि ये बात कितनी सच्ची है, तो सही में सारा दिन हम यही चाहेंगे कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, थोड़ा भी कम ज़्यादा नहीं, जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल वैसा वाला करें। जैसे इवन सिंपल चीज़, आप चाहेंगे कि घर साफ रहे। अब छुट्टी का समय चल रहा है, लॉकडाउन भी समय चल रहा है, तो हम घर पे इन्हीं बातों में भी थोड़ी से मन उलझ जाता है। इसने ये जगह पे नहीं रखा, उसने वो ठीक से नहीं उठाया, उसने वो चीज़ यहाँ रख दी। अब इंटेंशन तो बहुत अच्छा है कि घर को साफ करना है, लेकिन घर को साफ करने के लिए मन को थोड़ी गंदा करना है। घर सिर्फ चीज़ों से नहीं बनता है, घर हमारे वाइब्रेशन से बनता है। तो उन चीज़ों को सही जगह रखने के लिए रखना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो नहीं रखी है तो उसकी वजह से अपने मन को उलझा लेना है, तो वो तो फिर ऊर्जा जो घर की वाइब्रेशन है वो अफेक्ट हो जाएगी। तो ये तो जीवन की, इसको कोई परिस्थिति कहेंगे भी नहीं, ये तो एक रोज़मर्रा की बात है। लेकिन उसके लिए भी हम कितने सारे संकल्प कर लेते हैं कि ये सफाई नहीं रखते, ये ठीक नहीं रखते, ये चीज़ जगह पर नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो उतनी सफाई नहीं रख रहे हैं जितनी हम चाहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप उनसे कहेंगे ना घर को साफ रखो, तो वो कहेंगे हाँ घर तो साफ है। हम कहेंगे लेकिन नहीं साफ है, कहेंगे बिल्कुल ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन वो उतना साफ नहीं रखते हैं जितना हमें चाहिए। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अच्छा साफ रखते हैं, हमें उतना साफ भी नहीं चाहिए। तो हम उनको कहते हैं बस बस थोड़ा इजी रहो, अपना ही घर है, इतना ज्यादा परफेक्शन की जरूरत नहीं है, घर में रह रहे हैं, घर जैसी फीलिंग आनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं लेकिन हम तो घर को साफ रख रहे हैं। कहते हैं हाँ साफ ही है घर, इतना ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। विच मीन्स जो हमसे थोड़ा कम कर रहे हैं कोई सफाई, वो भी ठीक नहीं है। जो हमसे ज्यादा कर रहे हैं, कर तो अच्छा ही रहे हैं ना, सफाई कर रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं। उनको बोलते बस बस बहुत हो गया आज के लिए, और नहीं करना है कुछ भी। विच मीन्स जो कम कर रहे हैं उनसे भी हमारा मन उलझ जाता है, जो ज्यादा कर रहे हैं उनसे भी हमारा मन उलझ जाता है, जो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे घर पे उनसे भी हमारा मन उलझ जाता है, जो अपनी सेहत का ध्यान थोड़ा ज्यादा ही रख रहे हैं उनको भी हम कहते हैं बस बस कभी कभी तो कुछ खा लिया करो, इतना सब नहीं करने की जरूरत है। विच मीन्स हमारे मन को क्या चाहिए? हमारे मन को चाहिए कि सामने वाला हमारे अनुसार होना चाहिए। और जब तक सामने वाला हमारे अनुसार नहीं होता है, हमारा मन अंदर कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। तो परिस्थिति भी हमारे अनुसार चाहिए, लोग भी हमारे अनुसार चाहिए, और ऐसा होता तो है नहीं। और जब भी परिस्थिति और लोग हमारे अनुसार नहीं होते, तो हमारा मन रोना शुरू करता है। रोना मतलब डिस्टर्ब होना शुरू करता है, डिस्टर्ब होना शुरू करता है। वो डिस्टर्बेंस अलग अलग रूप में व्यवहार में आ सकती है, लेकिन मन डिस्टर्ब होता है। किसी के लिए वो डिस्टर्बेंस इरिटेशन के रूप में आती है, वो खिंच जाते हैं। किसी के लिए वो डिस्टर्बेंस गुस्से के रूप में निकल कर आती है। किसी के लिए वो डिस्टर्बेंस उदासी के रूप में आती है। किसी के लिए वो डिस्टर्बेंस रोने के रूप में आ जाती है, वो रो देते हैं। किसी के लिए वो डिस्टर्बेंस रूठने के रूप में आती है, वो बात ही करना बंद कर देते हैं सामने वाले से। बहुत अलग अलग भावनाएं हैं, लेकिन कारण एक ही है, वो मेरे अनुसार नहीं थे। और फिर अगर मेरे को मन को ठीक होना है तो सामने वाले को बदलना पड़ेगा, सामने वाले को सॉरी बोलना पड़ेगा। इतना सारा दिन हमारा मन दूसरों के व्यवहार और परिस्थितियों पे निर्भर हो गया, होता गया, और हमने रियलाइज भी नहीं किया
कि कुछ गलत हो रहा है। हमने कहा ये तो नेचुरल है ना, जब वो ठीक नहीं कर रहे तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। शरीर को चेक करते हैं। अगर हम अपने शरीर की चेकिंग कर लें तो मन का ध्यान रखना बहुत इजी हो जाएगा। शरीर को चेक करें। हम हर चीज अपने आप कर सकते हैं शरीर से, हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं। अगर किसी दिन हमारी तबीयत खराब हो जाती है और हमारा शरीर कमजोर हो जाता है तो हम कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए हम लोगों पर निर्भर हो जाते हैं। कोई मुझे हाथ पकड़ के उठाए, कोई मुझे हाथ पकड़ के वहां तक दूसरे कमरे तक लेकर जाए, एंड विच इज ओके, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे मदद की जरूरत है। तो छोटी छोटी चीजें जो कि हम रोज अपने आप बहुत आराम से कर सकते थे वो हम अपने आप नहीं कर पा रहे हैं। हमें किसी की हेल्प चाहिए। एक गिलास पानी भी पीना है ना तो हम किसी को कहते हैं प्लीज मुझे एक गिलास पानी ला दो, मेरे पास ताकत नहीं है रसोई तक जाकर पानी लाने की। लेकिन ये हमें दिखता है, ये हमें दिखता है कि हाँ मेरे पास ताकत कम है, मैं डिपेंडेंट हो गया हूँ। कुछ लोग कहते भी हैं मुझे अच्छा नहीं लगता लोगों पर डिपेंडेंट होना, मुझे अपना सब कुछ अपने आप करना है, लेकिन क्या करूँ ये बीमारी आ गई है। लेकिन अवेयरनेस कितनी है, रियलाइजेशन है कि मेरा शरीर कमजोर है इसलिए मैं अपना काम खुद नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ, विच इज फाइन। थोड़े दिन में हम ठीक हो जाएंगे और थोड़े दिन बाद हम अपना सारा काम खुद कर लेंगे, ये भी अवेयरनेस है। कभी 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 किसी को कोई ऐसी बीमारी होती है जो ठीक नहीं हो पाती है, शरीर कमजोर रहता है, कोई बात नहीं, तो उनका कोई ना कोई ध्यान रखता है। लेकिन तो भी नॉलेज तो है ना कि शरीर कमजोर हुआ है इसलिए ध्यान रख रहे हैं। कितनी नॉलेज है हमें इस चीज की, लेकिन मन के लिए हमने सेम नॉलेज को यूज नहीं किया। हमने ये नहीं रियलाइज किया कि हमें कैसा सोचना है। अगर अपना म्यूट करेंगे ना तो सबको कंफर्टेबल लगेगा। कुछ का म्यूट नहीं है, म्यूट नहीं है। या सबका म्यूट कर दीजिए फिर मैं अपना अनम्यूट करती हूँ। तो मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। आप सबको कर दीजिए फिर मैं करती हूँ। Yeah. एक मिनट मैं राइट, यही जीवन जीने का तरीका है। अगर कुछ कंफर्टेबल ना हो ना तो उसको वहीं रुक कर ठीक कर लेना चाहिए, है ना। नहीं तो हम अगला 1-1.5 घंटा बिता सकते थे, यहाँ से आवाज आ रही है वहां से आवाज आ रही है। जिनके यहाँ से आ रही है उनको अवेयरनेस नहीं है कि उनका म्यूट नहीं है और वो अपना नॉर्मल से आवाज कर रहे हैं, और हम उस डिस्टर्बेंस के साथ ही एडजस्ट होते रहते हैं और पूरा टाइम हम उस डिस्टर्बेंस को होने देते और हम साथ साथ ये भी कहते डिस्टर्बेंस है डिस्टर्बेंस है, लेकिन उसको ठीक ना करते। ये एक जीवन जीने का तरीका है। और दूसरा जीवन जीने का तरीका है जैसे कुछ दिखे कि कुछ डिस्टर्बेंस है, हमें उसको रुक कर चेंज करना है, चेंज करना है। और ये हमारे माइंड के लिए एप्लीकेबल है, ये हमारे माइंड के लिए है। वो इस बात से रोता है, उस बात से नाराज होता है, इस बात से परेशान होता है, अंदर एक डिस्टर्बेंस चलती रहती है। जो ये डिस्टर्बेंस आवाज अभी यहाँ आ रही थी ना, ये हमारे मन की स्थिति की रिफ्लेक्शन है। यहाँ भी सारा दिन ऐसे किच 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 किच, इधर की चिक चिक, इधर की कुछ 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 अंदर चलता ही रहता है। लेकिन एक्चुअली ऐसा हो गया है, अब इतना चलता है इतना चलता है कि अगर अंदर वो आवाज नहीं आ रही होगी ना एक दिन तो कंफर्टेबल नहीं लगता, कहते बहुत शांति, आज क्या हो गया इतनी शांति हो गई आज। क्योंकि हमने आवाज को नेचुरल, आवाज मतलब मन के शोर को नेचुरल समझ लिया, मन के शोर को नेचुरल समझ लिया। तो जैसे हमने शरीर का समझा कि स्वास्थ्य क्या है, कमजोरी क्या है, बीमारी क्या है, डिपेंडेंसी क्या है, निर्भरता क्या है, ये हमें समझ में आ गया, हम बहुत क्लियर हैं, छोटे से बच्चे को भी पता है ये। तो मन के लिए भी चेक कर लेते हैं, स्वास्थ्य क्या है, कमजोरी क्या है, बीमारी कौन सी है और निर्भरता क्या है। सेम चीज मन के लिए भी देख लेते हैं। मन की बीमारी, मेंटल हेल्थ इश्यूज,
अब कुछ समय से हमें उसके बारे में अवेयरनेस होने लग गई है कि डिप्रेशन है, एंजाइटी अटैक है, पैनिक अटैक है, या कभी कभी उससे ज़्यादा भी कुछ बातें हैं। वो मेंटल हेल्थ इशू है, मतलब मानसिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है। अब हम अगर अपने आप को चेक करें तो हम में से मेजॉरिटी कहेंगे नहीं, मुझे कोई मानसिक बीमारी नहीं है। परफेक्ट, वेरी गुड। लेकिन एक होता है मानसिक बीमारी और एक होता है भावनात्मक बीमारी। मतलब एक होता है मेंटल हेल्थ और दूसरा होता है इमोशनल हेल्थ, तीसरा होता है फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ हमें पता है, मेंटल हेल्थ भी हमें पता है, इमोशनल हेल्थ की चेकिंग करनी है कि मेरी इमोशनल हेल्थ कैसी है। इमोशंस मतलब हमारी सोच, हमारे भाव, हमारी भावनाएं, हम क्या महसूस करते हैं अंदर यहाँ, वो हमारी थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस, हमारी भाव और हमारी भावनाएं, वो हमारी इमोशंस हैं यहाँ पर। अब कौन सी मन की स्थिति को इमोशनल हेल्थ कह सकते हैं, कौन से मन की स्थिति को इमोशनल कमजोरी कह सकते हैं, और कौन से मन की स्थिति को इमोशनल बीमारी कह सकते हैं। 3 कैटेगरी हो गया, इमोशनल हेल्थ, इमोशनल कमजोरी, इमोशनल बीमारी। ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसका आंसर हम सबको पता है, लेकिन ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें तो पता होना चाहिए ना कि हम कहाँ पर हैं, और जहाँ पर भी हैं हमें पहुँचना तो परफेक्ट इमोशनल हेल्थ की तरफ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब मन स्थिर रहेगा, परिस्थिति चाहे कोई भी हो, सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, अगर मेरा मन संयम में चलेगा और मेरे अनुसार चलेगा, जैसा सही होगा उस समय सोचना, बोलना और करना वैसा चलेगा, तो हम इमोशनली हेल्दी हैं। हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं होगा कि लोग मुझे प्यार दें, लोग मुझे सम्मान दें, लोग मुझ पर विश्वास करें, लोग मुझे समझें, ऐसे ऐसे चाहिए नहीं होगा। इमोशनली हेल्दी देने वाला होगा। परिस्थितियां कभी अनुकूल होंगी, कभी विपरीत होंगी, लेकिन इमोशनली हेल्दी स्टेबल रहेगा, एक रस रहेगा, शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, निश्चय बुद्धि रहेगा, उसको विश्वास होगा अपने में, अपनों में, परमात्मा पर, अपने कर्मों पर, कि सब ठीक हो जाने वाला है। जो इमोशनली कमजोर होगा वो चिंता ही करता रहेगा, क्या होगा, कैसे होगा, अब कैसे होगा। आसपास के सब लोग बोलेंगे तुम चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। देख, कुछ ठीक नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं ठीक हो सकता, ये साल तो गया। ये वो अच्छा सोच नहीं पाएंगे, वो अच्छा सोच नहीं पाएंगे। और इमोशनल बीमारी वो तो तब होता है जब बातें सब अच्छी हैं तो भी अच्छा नहीं सोच पाते हैं। मतलब तो भी गुस्सा कर रहे हैं, किसी भी बात पर इरिटेट हो रहे हैं, किसी भी बात पर नाराज हो रहे हैं, और फिर कहते क्या करें, ये हमारी नेचर है। वो इमोशनल बीमारी को अपनी नेचर कह देते हैं। और अगर अपनी नेचर कह दिया, बहुत ध्यान रखना है कौन सी चीज को, ये मेरी नेचर है हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज को हम अपनी नेचर कहते हैं। क्योंकि जैसे ही हमने कहा ये मेरी नेचर है, उसके बाद हम उसको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कहा ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है, तो हम उसको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे मेडिकल साइंस हमें बताती है ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ये बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, ये शुगर लेवल नॉर्मल है, लेकिन किसी किसी का थोड़ा उससे ज़्यादा रहता है या थोड़े उससे कम रहता है। तो कोई उसको बोलता है अरे आपका बीपी तो डाउन है, कहते हैं नहीं नहीं ये मेरा नॉर्मल है, मेरा इतना ही आता है हमेशा। तो उसको वो कुछ ठीक करने के लिए भी नहीं करते। किसी का ज़्यादा होता है, कहेंगे आपका बीपी हाई, कहते नहीं ये मेरा नॉर्मल है, अब वो उसको कम करने का कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे। तो हमें अपनी नॉर्मल की डेफिनेशंस बहुत क्लियर करनी पड़ती हैं। समाज ने बहुत सारी अनकंफर्टेबल इमोशंस को नॉर्मल कहा हुआ है, और वो नॉर्मल कहना ही एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इमोशन को ठीक करना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन पहले उसको नॉर्मल कहना बंद करना पड़ेगा। 1 मिनट अपने आप को चेक कीजिए, अपने को चेक करना कौन सी अनकंफर्टेबल डिस्टर्बिंग भावनाएं हैं जिनको हमने और समाज ने नॉर्मल कहा हुआ है
ये तो नेचुरल है, ऐसा तो होता ही है। कितनी सारी ऐसी भावनाएं हैं जिसको हमने नॉर्मल कहा हुआ है। टेंशन, तनाव नॉर्मल है, गुस्सा आना नॉर्मल है, चिंता होना नॉर्मल है, डर लगना नॉर्मल है, ईर्ष्या होना नॉर्मल है, दूसरे से कंपैरिजन करना नॉर्मल है, किसी ने कुछ गलत कर दिया उस बात को भूल नहीं पाना बहुत नॉर्मल है, क्षमा नहीं कर पाना उसको वो भी नॉर्मल है। इतनी सारी बातें, किसी ने कुछ कह दिया, हर्ट हो जाना, दुखी हो जाना नॉर्मल है। अपमानित फील करना, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, मेरी डिसरिस्पेक्ट कर दी, नॉर्मल है। इतनी सारी बीमारियों को नॉर्मल बोल दिया, और हमने नहीं बोला, सिर्फ सबने बोल दिया। और अब तो हम अपने बच्चों को वही नॉर्मल सिखाकर बड़ा कर रहे हैं। ये तो नॉर्मल है, तुमको कल एग्जाम में टेंशन नहीं हो रही? टेंशन कैसे नहीं हो रही? वो कह रहा नहीं हो रही मुझे टेंशन। ऐसे कैसे टेंशन नहीं हो रही? तुमको डर नहीं लग रहा? नहीं, नहीं लग रहा मुझे डर। ऐसे कैसे तुमको डर नहीं लग रहा? तो हम उस बच्चे को सिखाते हैं। एक बच्चे को कभी भी ना पता हो टेंशन क्या होती है, डर क्या होती है, उसको सिखाते हैं उसको, ये टेंशन होती है, डर होता है। तो उनको हमने नॉर्मल तो बचपन से अब सिखाना शुरू कर दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक लिस्ट बनाइएगा आज, इसको लिख लीजिए अपने लिए। जीवन आज से बदलना शुरू हो जाएगा। परिवर्तन बहुत सहज है, लेकिन कौन सी चीज को परिवर्तन करना है ये सिर्फ क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हर बीमारी का इलाज है, मेजॉरिटी बीमारियां तो ठीक हो जाती हैं अभी, लेकिन डायग्नोज ठीक हो जाना चाहिए। डायग्नोज हो गया तो इलाज हो जाएगा, लेकिन कई बार कई कई साल डायग्नोज करने में ही लग जाते हैं। तो नॉर्मल, अब क्या नॉर्मल है खुद ही चेक करते हैं। नॉर्मल कैसे पता चलेगा कि क्या नॉर्मल है? जब यहाँ सुकून महसूस होगा, इजी फील होगा, लाइट फील होगा, उसका रिजल्ट शरीर पर आएगा। शरीर का ब्लड प्रेशर सही होगा, पल्स सही होगी, हार्ट बीट सही होगी, वो नॉर्मल है। स्कूल भी जब जाते थे ना, और कोई एग्जाम होता था मुश्किल वाला, तो उस दिन तबीयत खराब सी होने लग जाती थी। कहते थे मेरे पेट में कुछ कुछ हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग हो रही है। किसी को तो बुखार एग्जाम वाले दिन जरूर आता था, अगले दिन चला जाता था, लेकिन बुखार एग्जाम वाले दिन जरूर आता था। और वो उसका हर साल का नियम ही बन जाता था, सबको पता था अब कल एग्जाम है ना, इसको कल सुबह बुखार जरूर होगा कल। किसी को स्टेज पर पहली बार बोलने जाना होता था, उसका गला ही सूख जाता था, उसके पेट में फिर कुछ होने लग जाता था, किसी के हाथों पर पसीना आने लग जाता है। और हमने कहा ये तो नॉर्मल है। ये कैसे नॉर्मल हो सकता है? ये बुखार आना, ये नौशिया फील होना, पेट में दर्द होना, हाथ सूख, ये कोई नॉर्मल है? ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि मन ने कुछ ऐसा क्रिएट किया जो नॉर्मल नहीं था। तो इसलिए नॉर्मल की परिभाषा बहुत इजी है। जिस भावना में हमारा शरीर सही रहेगा, तो मन की लेवल पर नहीं चेक कर पा रहे, शरीर के लेवल पर तो चेक कर सकते हैं कि पल्स कितनी है, हार्ट बीट कितनी है। किसी को गुस्सा आए ना, उसका उसी टाइम वो पल्स मीटर लगा के पल्स चेक कर लेना उसी टाइम। उसका मत चेक करना जिसको डांट पड़ी है, वो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन जिसने डांटा है उसका नॉर्मल आना बहुत मुश्किल है उस टाइम पे। उसका उसी टाइम लगा देना है, बोले अब देखते तेरी पल्स कितनी है। अपने आप अगले दिन से आधा तो वहीं खत्म हो जाएगा। ओ मेरी पल्स इतनी बढ़ गई, लेकिन मैं डांट तो उसको रहा था, प्रॉब्लम तो उसको होनी चाहिए थी। सामने वालों को तो आदत पड़ जाती है हमारी डांट वगैरह की, वो कहते हैं ये इनका नॉर्मल है, ये चिल्लाते रहेंगे, हम नहीं रोज इनकी वजह से परेशान होने वाले। कौन अपनी सेहत खराब करेगा इनके गुस्से की वजह से? तो जो डांट खा रहा है उसके पास तो चॉइस होती है कि उसको बुरा लगना है, नहीं लगना है, रोना है या हंसना है, या हमारा मजाक उड़ाना है। कुछ लोग तो हमारा मजाक उड़ा देते हैं जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं। ऑफिस में देखो किसी को डांटो, तो थोड़ी देर बाद दूसरी जगह चाय कॉफी पीते हुए हमारे बारे में गप्पे मार रहे होंगे। रोज दिन का शुरू हो जाता है सुबह सुबह। सामने वाला कहते हैं छोड़ना, तो को मालूम है ना कैसे उनके एम ही शोर मचाते रहते हैं, इतना सीरियसली मत लिया कर उसको। और हमने अपनी सेहत बिगाड़ दी, हमने अपनी मन की भी सेहत बिगाड़ दी, हमने अपने शरीर का भी स्वास्थ्य बिगाड़ दिया। और जिनको डांटने के लिए हम वो सब कुछ कर रहे थे, वो तो हंस रहे हैं। उनके पास चॉइस है, सामने वाले के पास चॉइस है कि वो हमारी भावनाओं को कितना स्वीकार करता है, और उसके बाद वो कैसा सोचता है, फिर वो कैसा बोलता है, उनके पास सारी चॉइस है। लेकिन जो भावना हम क्रिएट करते हैं, गुस्सा अगर हमने क्रिएट किया,
तो हमारा मन और शरीर उसके प्रभाव से बच नहीं सकता है। हमारे ऊपर तो असर होना ही होना है। दूसरों पर कितना असर होना है उनके पास चॉइस है, हमारे पास चॉइस नहीं है। हमारे पर तो उसका असर होना ही होना है। तो भावना का असर शरीर पर पड़ जाता है। तो अब हम चेक करते हैं, टेंशन नॉर्मल है या शांति नॉर्मल है। एक एक साइड पे लिखते जाना, बाद में लिखना ये लिस्ट, लेकिन ये बनाना जरूर लिस्ट कि टेंशन नॉर्मल है मतलब तनाव नॉर्मल है या शांति नॉर्मल है। गुस्सा नॉर्मल है या आराम से बात करना नॉर्मल है। किसी को समझना नॉर्मल है या उसकी बात पर हर्ट हो जाना नॉर्मल है। जो बात खत्म हो गई उसको भूल जाना नॉर्मल है या 20 साल पुरानी बात को पकड़ के रखना और एक्यूरेटली बताना कि उस दिन उतने बजे उसने वो कलर की ड्रेस पहनी थी, वो उस कोने में खड़े थे और उन्होंने ऐसा कहा था। ये नॉर्मल है। आज सुबह का नाश्ता तो याद नहीं होता हमें कि हमने क्या खाया था, लेकिन 20 साल पहले एक एक वर्ड याद है। वो कौन सा नॉर्मल है? जीवन में एक दूसरे को सहयोग देना, एक दूसरे की मदद करना, केयरिंग, शेयरिंग, कोऑपरेशन, ये नॉर्मल है या एक दूसरे के साथ रेस में भागते ही रहना कि ये भी मेरा कॉम्पिटिटर है, ये भी मेरा कॉम्पिटिटर है, लाइफ ही एक कंपटीशन है। कौन सा नॉर्मल है? सारा दिन छोटी छोटी बातों पे शिकायत करना नॉर्मल है या शुक्रिया करना नॉर्मल है? शुक्रिया करते रहो। कितनी सारी चीजें हैं थैंक यू करने के लिए। इस कोविड के टाइम पर थैंक यू किया किसी को? कितनी चीजें थी थैंक यू करने के लिए इस 5 महीने के अंदर, लेकिन वो उतनी सारी चीजों को छोड़कर हम ये 2-3 चीजों की शिकायत करें। क्या करें, यहाँ घर बैठे हैं, कहीं जा नहीं सक रहे हैं, कितना बोरिंग हो गया है, बिजनेस भी डाउन हो गया है। अब उससे कोई कोविड तो चला नहीं जाएगा हमारी शिकायत करने से, लेकिन हमारे मन की स्थिति डाउन हो जाएगी, हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ जाएगा। परिस्थिति वही है, वही कोविड है, वही ट्रैफिक है मुंबई का, वही हमारे पति पत्नी बच्चे हैं, वैसा ही स्वभाव कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोच कैसी है? तो सबसे पहले आज लिस्ट बनाइएगा कि नॉर्मल क्या है और बीमारी क्या है। जैसे ही आपने अनकंफर्टेबल इमोशंस को बीमारी की साइड पर डालेंगे ना, आधा तो कल ही खत्म हो जाएगा, कल ही, क्योंकि हमें पता चलेगा तो मेरा बहुत नुकसान करती है। जो चीजें नॉर्मल है उनको आज हम मांग रहे हैं। हम कहते हैं मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, मतलब मुझे स्वास्थ्य चाहिए। बीमारी नॉर्मल है, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हमारा नेचुरल स्वभाव है। परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाते हैं। आत्मा का जो स्वभाव है, नेचर, स्व का भाव, आत्मा का जो संस्कार है, आत्मा का जो धर्म है, स्वधर्म है, वो है शांति, वो है खुशी, वो है प्यार, वो है शक्ति, वो है ज्ञान, वो है आनंद। ये हमारा नेचुरल संस्कार है, प्योरिटी, पवित्रता। अब हम भूल चुके हैं ये बात, तो हम जो भी सीन आता है उसमें हम परेशान, नाराज हो जाते हैं, हम शांति को यूज नहीं करते हैं। अब आप चेक करिएगा, आपके पास कोई भी काम करने के लिए जैसे सिंपल रसोई में जाएं तो 2-3 अलग अलग प्रकार की छुरी पड़ी होती है, नाइफ अलग अलग तरह की होती है, क्योंकि कोई नाइफ ब्रेड काटने के लिए होती है, कोई छुरी सब्जी फल काटने के लिए होती है, कोई छुरी मक्खन लगाने के लिए होती है, कोई छुरी केक काटने के लिए होती है। अलग अलग नाइफ्स होती हैं, एक ही नाइफ नहीं होती है कि एक ही नाइफ से सब कुछ काट लेंगे हम। 3-4 अलग अलग नाइफ्स होती हैं सारा काम करने के लिए। लेकिन हमें पता होना चाहिए ना, पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे कौन सी चीज के लिए कौन से चाकू को उठाना है। इसी तरह हमारे पास यहाँ बहुत सारे संस्कार हैं। कोई आत्मा नहीं है जिसके पास शांति का संस्कार नहीं है, हम सबके पास है। एंड हम में से मेजोरिटी के पास गुस्से का भी संस्कार है। तो अब सामने इसको दोनों चीजों को लेकर आइए। मेरे पास शांति का भी संस्कार है, मेरे पास गुस्से का भी संस्कार है, मेरे पास झूठ बोलने का भी संस्कार है, मेरे पास सच बोलने का भी संस्कार है, मेरे पास टाइम पे आने का भी संस्कार है, मेरे पास लेट आने का भी संस्कार है, मेरे पास अपने काम को परफेक्टली करने का भी संस्कार है, मेरे पास काम को टालते रहने का, कल करेंगे परसों करेंगे, वो वाला भी संस्कार है। मेरे पास
पुरानी बात को भूलने का भी संस्कार है, मेरे पास पुरानी बात को पकड़ रखने का भी संस्कार है। कोई ऐसा नहीं है जिनके पास दोनों नहीं है, दोनों नहीं है। हर एक के पास दोनों संस्कार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक के पास विल पावर है। हम कुछ चीजों में तो ऐसे अपनी विल पावर को यूज करते हैं कि जो दुनिया ने कहा था असंभव, वो हमने करके दिखा दिया। दुनिया ने कहा ये बिजनेस नहीं चल सकता, हमने कहा हमने यही काम करके दिखाना है। दुनिया ने कहा कमाल कर दी। लेकिन डॉक्टर ने कहा आप मीठा नहीं खाना आज से, आपका शुगर बॉर्डर लाइन पे है। तो हमने कहा नहीं डॉक्टर साहब, खाने के बाद तो मुझे मीठा लगता ही है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। तो विल पावर का संस्कार है, लेकिन कहाँ यूज करना है और कहाँ बोल देना नहीं मेरे पास नहीं है वो विल पावर। तो वो इतने बड़े बड़े काम कैसे किए थे? कहेंगे वो वाले हो गए, ये नहीं होता मेरे से, ये नहीं होता, इसमें मेरी विल पावर नहीं है, मुझसे ये चीज नहीं छूटती है। वो बड़ा काम हो गया, छोटा वाला नहीं छूट रहा है। लेकिन हमारे पास संस्कार है, हमने उस समय उस संस्कार को यूज किया, आज हम उसको यूज करने के लिए रेडी नहीं है। यूज कर लें तो आज भी असंभव को संभव करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी अपने आप को नहीं कहना मेरे पास ये संस्कार नहीं है, ये मेरे पास नेचर नहीं है। हमारे पास सारे संस्कार हैं। अब इनमें से अपनी नेचर किसको कहना है? ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा संस्कार है। तो परमात्मा सिखाते हैं जो भी इमोशन कंफर्टेबल ना हो आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपके अपनों के लिए, आपके काम के लिए, जो भी इमोशन कंफर्टेबल ना हो उसको कभी नहीं कहना ये मेरी नेचर है। कभी भी नहीं कहना। चाहे दिन में आपको 10 बार गुस्सा आ जाए, कोई बात नहीं है, खत्म हो जाएगा कल। लेकिन ये नहीं कहना गुस्सा मेरी नेचर है, मेरा नहीं कहना उसको। क्यों नहीं मेरा कहना उसको? तो परमात्मा कहते हैं जिसको आप प्यार से मेरा है, मेरा है, मेरा है, वो तो घर बैठ ही जाएगा आपके, फिर वो तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपने कहा ये तो मेरे हैं। तो कभी भी कोई भी अनकंफर्टेबल संस्कार को मेरा नेचर है ये नहीं कहना है। भले दिन में 10 बार गुस्सा करो, लेकिन कहो शांति मेरी नेचर है। मेरा, आई, माइन, उसमें सिर्फ और सिर्फ हाई वाइब्रेशनल संस्कार होने चाहिए। लो वाइब्रेशनल संस्कार, अनकंफर्टेबल संस्कार, डिफिकल्ट संस्कार, इनको कभी भी मेरा नहीं कहेंगे। मेरा कहने से वो और बढ़ जाता है, ये मेरा है, मेरा है, अटैचमेंट और बढ़ती जाती है उस संस्कार के साथ। बोलो ये संस्कार है अभी, लेकिन ये मेरी नेचर नहीं है, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, खत्म कर रही हूँ। मेरा संस्कार तो प्यार है। सत्तो गुणी आत्मा, सत्तो गुणी आत्मा। हर आत्मा के ऊपर 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को समझने के लिए, औरों को समझने के लिए। हर आत्मा के पास 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। जैसे हमारा लैपटॉप है ना अभी, उसमें 5 फोल्डर है, ऐसे यहाँ पर जो है ना उस पे 5 फोल्डर है। एक फोल्डर हर आत्मा के पास पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फोल्डर है, इसमें बहुत सारे संस्कार होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। हमारा पूर्व जन्म, पास्ट बर्थ के संस्कार, क्योंकि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो अपने साथ संस्कार और कर्म ही लेकर जाएगी, बाकी सब तो पीछे छूट जाता है। तो विजुअलाइज करो, यहाँ से शरीर छोड़ा, गए दूसरे परिवार में, माँ के गर्भ में प्रवेश कर लिया। कुछ महीनों के बाद बच्चा पैदा हो गया। वो बच्चा कोई ब्लैंक स्लेट नहीं आता है, वो अपने पूर्व जन्म के संस्कार अपने साथ लेकर आता है। इसीलिए हर बच्चे की जन्म पत्री अलग होती है। उसी क्षण, उसी शहर में, उसी हॉस्पिटल में, हो भी सकता है उसी माता पिता के 2 बच्चे होते हैं, लेकिन दोनों का भाग्य अलग अलग होता है, जबकि सब कुछ सेम है बाहर, क्योंकि दोनों जो पूर्व जन्म से संस्कार लेकर आए हैं वो दोनों के अलग अलग है। तो ये मैं आत्मा, उस पे एक फोल्डर पूर्व जन्म का संस्कार, दूसरा फोल्डर परिवार, माता पिता से मिले संस्कार, गर्भ से मिले संस्कार। गर्भ संस्कार मतलब आत्मा को गर्भ में ही संस्कार मिलने शुरू हो जाते हैं। तो गर्भ संस्कार, पेरेंटल संस्कार, हम कहते हैं ना ये इसका दादी की तरह है, ये इसकी नानी की तरह है, ये इसको पिता से मिला।
हमारे को बहुत सारे संस्कार फैमिली से मिलते हैं। तीसरा फोल्डर, संग का रंग। संग का रंग, किस माहौल में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, किस धर्म मतलब कौन से रिलीजन की फैमिली में पैदा हुए तो बहुत सारे संस्कार उससे बन जाते हैं। कौन से स्कूल गए थे, कौन फ्रेंड्स थे। इस समय तो मीडिया भी एक संग का रंग है, क्योंकि सारा दिन सबसे ज्यादा तो हम उसी के संग में रहते हैं आजकल, तो मीडिया भी संग का रंग है। तो तीसरा फोल्डर, संग का रंग, वातावरण से मिले हुए संस्कार। पूर्व जन्म के संस्कार, बहुत पावरफुल फोल्डर। पेरेंट्स फैमिली से मिले हुए संस्कार, बहुत पावरफुल फोल्डर। वातावरण से, संग के रंग से मिले संस्कार, बहुत पावरफुल फोल्डर। और कई बार हम अपनी पूरी जीवन इन्हीं संस्कारों के साथ बिता देते हैं। लेकिन हमारे पास एक चौथा फोल्डर है और वो है विल पावर। मतलब इन तीनों फोल्डर में से अगर मुझे कोई भी संस्कार ऐसा है जो मुझे पसंद नहीं, तो मैं आत्मा उसको चेंज कर सकती हूँ। वो शक्ति हमारे पास है, स्व इच्छा से बनाए हुए संस्कार। सपोज हम एक संस्कार लेकर आए हैं झूठ बोलने का, कोई संस्कार लेकर आया, छोटी छोटी बातों में फीलिंग आ जाती है, छोटी छोटी बातों में रूठ रूस जाते हैं। बहुत सारे संस्कार हम लेकर आ सकते हैं, लेकिन हम आज डिसाइड करें विल पावर, संस्कार चेंज, कि बस आज से चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सत्यता के रास्ते पर, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो कहेंगे ओहो इसका रहने दो, ये नहीं छोड़ सकता है, इनके घर में तो ये भी झूठ बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, ये नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन वो आत्मा ऐसे परिवर्तन हो जाती है, चाहे वो पूर्व जन्म से लाई हो, चाहे उसकी परिवार की वो आदत हो, वो आत्मा चेंज कर सकती है। क्योंकि चौथा फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी विल पावर, स्व इच्छा से बनाए हुए संस्कार। पांचवा फोल्डर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पांचवा फोल्डर है, एक ही फोल्डर है जो हर आत्मा के पास है। ये चारों फोल्डर हम सबके अलग हैं। आपके दोनों बच्चों को देखेंगे ना, उन दोनों के भी संस्कार अलग अलग हो गए। कई बार माता पिता अपने दोनों बच्चों को देखते हो, कहते हैं ये दोनों एक दूसरे से इतने अलग कैसे हैं, कैसे इतने अलग हैं। हमने दोनों को सब कुछ सेम दिया, वो सेम स्कूल में जाते हैं, उनके सेम फ्रेंड्स होते हैं, संग भी सेम था, फैमिली भी सेम थी, लेकिन दोनों अलग अलग हैं क्योंकि दोनों के पूर्व जन्म के संस्कार अलग थे। लेकिन एक फोल्डर है जो सबके पास सेम है, और सबके पास मतलब हर आत्मा के पास वो एक फोल्डर सेम है। और वो जो फोल्डर है वो है मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। मतलब जैसे ये ड्रेस है, ये सफेद है, इसका ओरिजिनल कलर, स्वभाव सफेद है, लेकिन सुबह से रात तक इसको पहना तो इस पे कुछ ना कुछ दाग लग जाते हैं। और रात तक पहुंचते पहुंचते अगर मुझे भूल जाए कि दाग है, ये ओरिजिनल कलर सफेद है, तो मैंने तो उस दाग को मिटाने का कुछ करना ही नहीं है। मैंने कहा ये दाग ही नेचुरल है, लेकिन वो दाग नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल है। तो उसी तरह वो जो पांचवा फोल्डर है उसमें जो है वो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं। सत्तो गुणी आत्मा, सत्तो गुणी आत्मा मतलब 7 गुण हर आत्मा के निज संस्कार है। पवित्रता, प्योरिटी, हर आत्मा का संस्कार है, पवित्रता, प्योरिटी। पीस, शांति, विश्व में कोई आत्मा नहीं होगी जिसको शांति नहीं चाहिए। जो युद्ध करना चाहते हैं उनको पूछो क्यों इतना झगड़ा करते हो, कहते शांति चाहिए हमें अपने देश में, हमारे शहर में। वो शांति के लिए युद्ध करते हैं, लेकिन चाहिए उनको शांति, क्योंकि शांति उनका संस्कार है। सो पवित्रता, शांति, प्यार, लव, हर एक को प्यार चाहिए। किसी को कुछ कहो उसको कहते हैं कि यही बात आप प्यार से भी तो बोल सकते थे, लेकिन वो डांट रहा है सामने वाला, लेकिन उसको कहेंगे यही बात आप प्यार से भी समझा सकते थे, क्योंकि मुझ आत्मा को प्यार चाहिए। खुशी, सुख जिसको कहते हैं, हैप्पीनेस, ये हमारा संस्कार है। हर एक को चाहिए, हर एक को पूछो इतना जीवन में मेहनत क्यों कर रहे हैं, कहते खुशी के लिए, सुख के लिए, हैप्पीनेस के लिए, अपने के लिए, अपनों के लिए। ज्ञान, विजडम, नॉलेज, शक्ति,
पावर, पावर, विल पावर कहें, पावर कहें, शक्ति हर आत्मा का संस्कार है। और सातवां आनंद, ब्लिस, आनंद। सुख और आनंद में बहुत फर्क होता है। आनंद, तो ये 7 गुण, पवित्रता, प्यार, शांति, शक्ति, सुख, ज्ञान, आनंद, सतोगुणी आत्मा, ये 7 गुण हर आत्मा के पास है। तो वो 5वां एक फोल्डर है जो सबका कॉमन है, बाकी 4 सबके अलग हैं। अब जैसे कोई परिस्थिति आए, हमारे पास चॉइस है कौन सी फाइल ओपन करनी है। हमारे पास 5 फोल्डर हैं, 5 फोल्डर में अलग अलग संस्कार हैं। हमारे पास चॉइस है, सिचुएशन आई है, हम कौन से फोल्डर में से कौन सी फाइल खोलना चाहते हैं। तो मेरे पास पूर्व जन्म के संस्कार में गुस्से का संस्कार है, वो एक फाइल है। लेकिन मेरे पास अपने ओरिजिनल फोल्डर में शांति का संस्कार है, तो हमारे पास दोनों है। जैसे ही परिस्थिति आई, मुझे कौन सा यूज करना है। शांति चाहिए नहीं, खुशी चाहिए नहीं, फोल्डर में है, उसको यूज करना है। जब उसको यूज करेंगे तब उसको अनुभव करेंगे। हम संस्कार को सिर्फ तब अनुभव कर सकते हैं जब हम उसको अपने कर्म में लेकर आएंगे। आज आप सारा दिन में जितने कर्म शांति के संस्कार से करेंगे, उतनी देर आप शांति महसूस करेंगे, आपके आसपास के लोग शांति महसूस करेंगे, आपके घर में शांति महसूस होगी, क्योंकि आपने शांति के संस्कार को यूज करके वो कर्म किया। लेकिन अगर हम चिंता के संस्कार को यूज करेंगे, तनाव के संस्कार को यूज करेंगे, तो हम शांति अनुभव नहीं करेंगे। और क्योंकि हम शांति अनुभव नहीं करेंगे, हम कहेंगे शांति चाहिए, थोड़ी सी शांति चाहिए मुझे, तो फिर हम उसको चाहिए वाली साइड पर चले जाएंगे। वो चाहिए नहीं, वो हमारा संस्कार है। और इसीलिए जब हम राजयोग मेडिटेशन सीखते हैं, तो सबसे पहली चीज जो हम सीखते हैं, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। आई एम अ पीसफुल बीइंग। शांति चाहिए नहीं, आई एम अ पीसफुल बीइंग। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे प्यार चाहिए नहीं, प्यार मेरा संस्कार है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझे पावर चाहिए नहीं, ये मैं हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। जब हम पहले दिन आते हैं सेंटर पे, तो ये 7 लाइनें सुनते हैं। अच्छा, फिर हम कहते हैं लेकिन हम हैं नहीं है। तो हमारे को दीदी समझाएंगी, हाँ मुझे पता है आप नहीं हैं, लेकिन आज से आप ऐसा सोचना शुरू करो। हम कहते हैं ऐसा कैसे सोचेंगे, जब हम नहीं है शांत स्वरूप, तो हम क्यों बोले हम शांत स्वरूप हैं। तो वहां पर वो इक्वेशन आती है कि संकल्प से सिद्धि होती है। जैसा सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे। संकल्प से सिद्धि होती है। शरीर के लिए जैसा सोचेंगे, शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता जाएगा। व्यापार के लिए, काम के लिए जैसा सोचेंगे वैसा बनता जाएगा। रिश्तों के लिए जैसा सोचेंगे वैसा बनता जाएगा। सृष्टि के लिए जैसा सोचेंगे वैसे बनती जाएगी। संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से सिद्धि बनती है। तो आज से सिर्फ इन 7 संस्कारों को, ओनली दीज 7 क्वालिटीज, इन 7 संस्कारों को ही अपनी नेचर कहना। कोई नेगेटिव वाले संस्कार को, अनकंफर्टेबल संस्कार को कभी अपनी नेचर नहीं कहना, ये मेरा स्वभाव है। नहीं, मेरा स्वभाव सिर्फ 7, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, आनंद, सुख, प्यार, शांति, ये मेरा स्वभाव सिर्फ 7। बाकी सब ऊपर से लगे दाग। 7 गुण ये व्हाइट कलर, बाकी सब ऊपर से लगे दाग, या तो इस जन्म में लगे, या पूर्व जन्म में लगे, या संग की वजह से लगे, वो लगे दाग। लेकिन याद रहता है ये तो सिर्फ दाग है, थोड़ा सा ऐसे करेंगे और दाग खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर दाग को ही ओरिजिनल कलर मान लिया, तो ऐसे करेंगे ही नहीं ना उसके ऊपर। आप सोचो, आपने कोई रंग की ड्रेस पहनी है, आप ऐसे थोड़ी करेंगे उसका रंग हटाने के लिए, क्योंकि आपको पता है ये रंग है, उस कलर ड्रेस का रंग है। लेकिन हमने दाग को रंग मान लिया ड्रेस का, और हमने कहना शुरू किया
मैं अशांत हूँ, परेशान हूँ, नाराज हूँ, मुझे शांति चाहिए। तो जो ओरिजिनल कलर था उसको बाहर से ढूंढ रहे हैं। मुझे खुशी चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। ओरिजिनल वाइट पे ब्लैक ब्राउन दाग लगाकर जीवन में चले और बोले मुझे वाइट कलर चाहिए, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसीलिए ज्ञान और योग, मेडिटेशन क्या करता है, ये जो 5वां फोल्डर है और उसके वो जो 7 संस्कार है उसको जागृत करना शुरू करते हैं। जो हम भूल गए थे कि हमारा स्वभाव है, उसको जागृत करना शुरू करते हैं। तो आज से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। चाहे कोई भी बात आ जाए, कोई भी मतलब कोई भी मतलब कोई भी मतलब वो इतनी छोटी बात हो सकती है कि ट्रैफिक बहुत है बॉम्बे में, सुबह हम ऑफिस जा रहे थे, या वो इतनी बड़ी बात हो सकती है कि मेरी नौकरी छूट गई आज, या वो उससे भी बड़ी बात हो सकती है। बात का कोई साइज नहीं होता है, लेकिन एक इक्वेशन याद रखनी है, बात बाहर है, छोटी है, बड़ी है, आसान है, मुश्किल है, लेकिन बात बाहर है। मन की स्थिति मेरी अपनी है। ये इक्वेशन याद रहा, आधी चीजें तो वहीं ठीक हो जाएंगी, क्योंकि हम ब्लेम करना बंद कर देंगे। उनकी वजह से बुरा लगा, उनकी वजह से गुस्सा आया, उनकी वजह से नहीं, मैंने क्रिएट किया, ये मेरी रचना थी, ये मैंने चूज किया उस समय ऐसा करना, कर लिया, कोई बात नहीं, कल ठीक कर लेंगे। लेकिन ये नहीं कहना उनकी वजह से गुस्सा आ गया, उनकी वजह से गुस्सा आ गया तो उनको ठीक करने लग जाते हैं। तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओगे तो हमारे घर में शांति होगी। सारा दिन में देखो कितनों को कहते ठीक हो जा, घर स्वर्ग बन जाएगा। तो वो ठीक हो जाएंगे तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। हमें ठीक होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं तो ठीक हूँ, इनकी वजह से मैं परेशान होती हूँ, मेरे को अदरवाइज कौन सी परेशानी है। और ये ब्लेम सबसे बड़ी यहाँ उलझन का कारण है, क्योंकि दुनिया के व्यवहार परिस्थितियों को अपने स्वभाव का कारण समझ लिया, तो हमारा मन जैसे कि दूसरों के कंट्रोल में चला गया। सोचो एक दिन सबके पास रिमोट कंट्रोल मिल जाए हमारे माइंड का, 1 मिनट के लिए भी सोचो सबके पास आपके चारों तरफ रिमोट कंट्रोल हो। कोई दबाएगा खुशी तो हम खुश हो जाएंगे, कोई दबाएगा उदासी तो हम उदास हो जाएंगे। ये कोई जीवन है? ऐसा कैसा जीवन होगा? लेकिन हमने अपना जीवन ऐसे ही बनाया हुआ है आजकल। कोई अच्छा कुछ कहता है हम ऐसे हो जाते हैं, कोई कहता है हाय आपकी साड़ी कितनी सुंदर है, आप कितने अच्छे लग रहे हो, ओ हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं। उतनी देर में कोई आता है बोलता है ये कौन सी साड़ी है, ये कब खरीदी, देखी थी लेने से पहले, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। हम नेक्स्ट क्षण ऐसे हो जाते हैं। तो ये तो रिमोट कंट्रोल ही हो गया ना, ये रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में ही तो हो गया। किसी ने कुछ अच्छी लाइन कही हम वहां, किसी ने कुछ हमारे अनुसार नहीं कहा हम यहाँ, फिर हम ऊपर, फिर हम नीचे, फिर हम ऊपर, फिर हम नीचे। किसी के घर में खुशी होती है, कहते ज्यादा खुश मत हो, अभी कोई गम आ जाएगा। ऐसे क्यों आएगा? कहते नहीं नहीं ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। ज्यादा खुश होने से डर लगता है। कहते ज्यादा खुश नहीं, ज्यादा खुश है ना मतलब कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अपने नेचुरल स्वभाव से भी डरने लग गए। नेचुरल, इट्स लाइक इतनी हेल्दी है हम, नहीं नहीं इतना हेल्दी नहीं होना चाहिए, कल बीमारी आ जाएगी। ऐसे कौन बोलता है? लेकिन हम बोलने लग गए ऐसा, क्योंकि किसी ने बोला, हमने सुन लिया तो हमने भी बोलना शुरू कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका रोज आज एक्सपेरिमेंट करना, रोज एक्सपेरिमेंट करना। यहाँ जो चल रहा है ये मेरी चॉइस है, बाहर जो चल रहा है वो मेरी चॉइस नहीं है। यहाँ तक कि आपके बच्चे आपसे कैसा व्यवहार करेंगे वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। जिनके लिए हम कहते हैं मेरा बच्चा है, ये मेरे गर्भ में बना है, ये मेरा है, ये तो सबसे ज्यादा मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। उन्हीं बच्चों के लिए आज कहते क्या करे जी, वो कहना ही नहीं मानते, मेरा बिल्कुल कहना नहीं मानते। तो बच्चा क्यों कहना मानेगा? उसका मन उसके कंट्रोल में है, वो चूज करता है कब कहना मानना, कैसे बोलना, कैसे नहीं बोलना। उसके ऊपर प्रभाव किसका है? संग का रंग, मीडिया, वातावरण, बहुत सारी बातें, उसके पूर्व संस्कार भी हो सकते हैं। तो मेरा बच्चा, हम सिर्फ किसको कहते हैं? ये मन हमारा बच्चा है। ये मन वो एक और आत्मा है, रोल हमारे बच्चे का प्ले कर रही है, लेकिन एक आत्मा है जो अपनी यात्रा पर आई है। वो पूर्व जन्म से अपने संस्कार और कर्म लेकर आई है।
हमारा रोल एज अ पेरेंट क्या है? उसको श्रेष्ठ संस्कार बनाने की शक्ति देना। लेकिन उसको हम कंट्रोल कर लें कि वो हमारे अनुसार चले, ये तो हो नहीं सकता है। एक ही है जो हमारे अनुसार चल सकता है, और वो है हमारा मन। सिर्फ एक ही है जो हमारे अनुसार चल सकता है, और वो है हमारा मन। उस मन को हमने कह दिया मेरा मन चंचल है। चंचल है बोल दिया मतलब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। बाकी सबको मैं कंट्रोल कर लूं, लेकिन मैं अपने मन को नहीं कंट्रोल कर सकती। ऑपोजिट चले गए। बाकी सब तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक यही हमारे कंट्रोल में है। क्यों ये हमारे कंट्रोल में है? क्योंकि इसके ऊपर बाहर का किसी भी चीज का प्रभाव नहीं आ सकता। इसके ऊपर सिर्फ हमारा संयम चलता है। तो आज से अपनी वोकैबुलरी को चेंज करेंगे। अब मेरा मन चंचल है सुना है, बहुत लोग कहते हैं, हमने भी अनुभव किया है, तो हम भी कहते हैं मन चंचल है। जितना हम कहेंगे वो और वैसा होता जाएगा, क्योंकि संकल्प से सिद्धि है। तो आज से हम कहेंगे मेरा मन पूरी तरह से मेरे अनुसार चलता है। आसपास के लोग कहेंगे नॉर्मल नहीं है, इसका मन पूरी तरह से इसके अनुसार कैसे चलता है? बोलो मेरा मन मेरा मित्र है, ये मेरे अनुसार चलता है। जब चाहो जैसा चाहूं मैं वैसा सोच सकती हूँ। जितनी देर वो सोचना है उतनी देर मैं सोचती हूँ। मेरा मन मेरे कंट्रोल में है। वी हैव टू स्टार्ट। हम ऑपोजिट नहीं बोल सकते जो सुनते आए हैं। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट जरूर करना है। चाहे कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, मौसम कुछ भी हो जाए, कोविड आ जाए, इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम आ जाए, इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम आ जाए, मन की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। और ये सारा दिन हम अनुभव करते हैं। अब वही कोविड है, कोई बहुत परेशान है, कोई परेशान है, कोई निश्चिंत है। ऐसा मतलब नहीं है कि जो निश्चिंत है उसके सामने परिस्थिति नहीं आई है। किसी और से भी क्या कंपैरिजन करना, अपने घर में ही देख लो। अब वो ही कोविड में उसी बातों में किसी को बड़ा डर लग रहा होगा, हाय मुझे ना हो जाए, हाय मुझे ना हो जाए। दूसरे को इसमें क्या डरना है, हम ध्यान रख रहे हैं ना, सब ठीक रहेगा। तीसरा केयरलेस, ध्यान ही नहीं रखेगा, मास्क ही नहीं लगाएगा, हाथ ही नहीं धोएगा। ये सब अलग अलग लोग एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। परिस्थिति तो सेम है, रिस्पॉन्स हर एक का अलग अलग क्यों है? क्योंकि परिस्थिति हमारा रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट करती, ये हम क्रिएट करते हैं। ये इतनी गहरी लाइन है कि इसको कई समय लग जाता है अच्छे से इसको बार बार प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन शुरुआत तुरंत हो जाती है जैसे ही समझ में आ जाए। तो अब कुछ भी लगे अंदर, कैसा भी महसूस हो, सिर्फ एक लाइन नहीं कहना इनकी वजह से, इनकी वजह से। बोले मैंने किया, ये ईर्ष्या किसने की? मैंने की। ये कंपैरिजन किसने किया? मैंने किया। ये हर्ट किसने क्रिएट किया? मैंने। जैसे ही हम कहते हैं मैंने, ये पावर हमारे पास आ जाती है। मैंने, जैसे हम कहते हैं उनकी वजह से, पावर उनके पास चली जाती है। आप जैसा चाहें आप मेरे मन को चला सकते हैं, एंड उसकी वजह से इमोशनल इम्यूनिटी घटती जा रही है। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, आत्मा सिर्फ स्वयं पर निर्भर, परिस्थिति निर्भर नहीं, व्यक्ति निर्भर नहीं, मौसम निर्भर नहीं, पैसा निर्भर नहीं, बिजनेस निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर ना वर्ड तो अच्छा लगता है सुनने में, अब इसको एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। आत्मनिर्भर, ऊपर ऊपर और नीचे, उतार और चढ़ाव बाहर हो सकता है, अंदर ऊपर नीचे नहीं होगा। अंदर स्थिर, संयम, ये हमारी चॉइस है। और इसी के लिए डेली मेडिटेशन, डेली स्पिरिचुअल स्टडी इसमें बहुत मदद करती है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा इतनी आत्मनिर्भर होने की बजाय परिस्थिति निर्भर क्यों हो गई? इसका कारण क्या है? जैसे शरीर इंडिपेंडेंट होने की बजाय डिपेंडेंट क्यों हो जाता है? कमजोरी, हम कहते हैं कमजोर हो गए हैं, अपने आप चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, इनको मदद की जरूरत है। पर ये तो पहले ठीक थे, लेकिन अब कमजोर हो गए हैं। हम भी पहले ठीक थे। हम वो शायद लास्ट जनरेशन होगी जिसने वो वाला समय देखा है जहां स्ट्रेस कोई वर्ड नहीं था, डिप्रेशन किसी को हुआ नहीं करता था,
डिवोर्स को हम अच्छा नहीं माना करते थे, डायबिटीज वो थोड़ा थोड़ा किसी को हुआ करता था। हम वो लास्ट जनरेशन है जो वो स्ट्रॉन्ग थे इमोशनली। आज भी कुछ लोग हैं लेकिन मेजोरिटी नहीं, मेजोरिटी नहीं। और हमें अब वैसा कुछ करना है जिससे हम वापस मेजोरिटी सारे इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाए और फिर सारे स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसका बहुत बड़ा कारण है जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं। इमोशनल डाइट, इमोशनल डाइट। शरीर कमजोर हो तो डॉक्टर सबसे पहले डाइट पूछेगा, जी बताइए आप सारा दिन में क्या खाते पीते हैं। मन कमजोर हो तो सिर्फ एक दिन चेक करना, सारा दिन में आप क्या सुनते, पढ़ते, देखते हैं। जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो अंदर जाता है, वो हमारी सोच बनती है। जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, what we watch, what we read, what we listen। तो हमें पता है कि पिछले 10-20 सालों में मीडिया कहाँ से कहाँ पहुंचा, कहाँ से कहाँ पहुंचा। हम वो जनरेशन है जिनके पास इंटरनेट नहीं था, जिनके पास कंप्यूटर नहीं था, जिनके पास मोबाइल नहीं थे, जिनके पास तो फोन भी नया नया आया था उस टाइम पे, जिनके पास पहला टीवी पहला आया था, पहला उस पे कोई सीरियल हमने देखे हैं, राइट, हमने वो देखे हैं। और हम ही वो जनरेशन है जो ये देख रहे हैं कि सारे एपिसोड इकट्ठे फोन पे आ जाते हैं, अगले संडे तक वेट नहीं करनी पड़ती अगला एपिसोड देखने के लिए, सारा का सारा सीजन पूरा, ये सीजन 1 ये सीजन 2 सारे इकट्ठे आ जाते हैं। हमने ये दो युग देखे, ये भी दो युग ही है, एक ये अलग ईरा है, ये एक अलग ईरा है। एक पहला पहला मीडिया आया, पहला, जस्ट उतना रिवाइंड कीजिए और सिर्फ देखिए उस टाइम पर दुनिया का समाचार कैसे सुनाया जाता था। आज भी देख सकते हैं उन चैनल्स को कि दुनिया का समाचार कैसे सुनाया जाता है। परिस्थिति तो वही है, वो भी कोविड के बारे में ही बोलेंगे, वो भी जो देश में हो रहा है उसके बारे में ही बोलेंगे, लेकिन कैसे बोलते हैं, कैसे सुनाते हैं, सुनाने का तरीका, शब्द, भाषा, सब कुछ। उस समय की सिनेमा देखिए, उस समय के सीरियल देखिए, उस समय के गाने देखिए, उससे पहले वाले भी देखिए, उसके बाद वाले भी देखिए और अब वाले भी देखिए। वहीं के वहीं पता चल जाएगा कि इमोशनल हेल्थ पर किसका असर पड़ रहा है। क्यों मेरे अंदर इतना गुस्सा, इतना आक्रोश, इतना चिड़चिड़ापन, इतना ईर्ष्या, ईर्ष्या एक दूसरे से, क्यों मेरे अंदर दूसरे से कंपैरिजन और कंपटीशन आ गया? क्योंकि मैंने सारा दिन वही वाली बातें सुनी, पढ़ी, देखी, सुनी, पढ़ी, देखी। एक के बाद एक आजकल बच्चे सीरियल देख लेते हैं, एक एपिसोड दूसरा तीसरा कहते आज पूरे दिन में मैंने पूरा सीजन देख लिया, उसका खत्म कर लिया, खत्म। पता ही नहीं है कि अपने अंदर क्या भर दिया पूरे दिन के अंदर, कैसी खुराक खा ली। इट्स लाइक एक समोसा आज खाओ तो एक समोसा अगले संडे खाएंगे तो भी बीमार हो जाते थे। हमने तो कहा मैंने 10 कट्ठे ही खा लिए सारे आज ही, तो शरीर पर असर नहीं पड़ेगा उसका, तो हमारे मन पर असर पड़ रहा है जो हम सुनते, देखते, पढ़ते हैं। अगर किसी को भी अपने मन में सुकून लाना है और ये जो शोर बजता रहता है सारा अंदर, इसको ठीक करना है, सबसे पहली चीज अपनी इमोशनल डाइट। मतलब मीडिया से क्या लेना है, मूवीज कैसी देखनी है, सीरियल कौन से देखने हैं, गाने कैसे सुनने हैं, सोशल मीडिया से क्या लेना है। जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो हम बनते हैं, वो हम बनते हैं। इसीलिए क्योंकि सारा दिन में इतना सारा कंटेंट है हमारे आसपास, इसीलिए कम से कम सुबह 1 घंटे का समय रखना चाहिए अपने आप को शक्तिशाली कंटेंट देने के लिए, शक्तिशाली डाइट। वो है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी क्यों चाहिए हमें? स्पिरिचुअलिटी खुराक है, डाइट है। क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्मा कुमारीज में हम क्या करते हैं, सुबह सुबह सेंटर पे चले जाते हैं, मतलब लॉकडाउन के पहले 1 घंटे के लिए। उसके बाद हम अपनी जॉब, हम अपना बिजनेस, हम अपना परिवार सब कुछ संभाल रहे हैं, लेकिन सुबह 1 घंटा हम सेंटर पर जाते हैं। उस 1 घंटे में जो भरता है अंदर वो है परमात्मा का ज्ञान,
उसमें क्या है? उसमें है निश्चय, उसमें है निर्भयता, उसमें है सद्भावना, उसमें है क्षमा, उसमें है पवित्रता, उसमें है विश्व कल्याण। ये सुबह सुबह चला जाता है। उसमें है मैं आत्मा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो रोज सुबह भरता है, रोज 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 सुबह भरता है, मैं आत्मा हूँ। सामने वाला भी जिससे मैं बात कर रही हूँ वो आत्मा है। नहीं तो उससे पहले मैं हर चीज हूँ लेकिन मैं आत्मा हूँ याद नहीं था। मैं नाम हूँ, मैं रोल हूँ, मैं पोजीशन हूँ, मैं स्टेटस हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो सिर्फ सत्संग में ही हुआ करता था। सारा दिन में किसको याद था कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ, मतलब हम इक्वल हैं। मैं परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा दाता है, मैं उसकी संतान भी दाता हूँ। परमात्मा सबके दुख हर के सुख देता है, मैं आत्मा उसकी संतान हूँ, मैं भी दुख हर के सुख देती हूँ। ये सुबह सुबह भर जाता है अंदर, रोज भरता है 1 घंटे के लिए, रोज भरता है रोज। अब शुरू शुरू में तो लगता है हाँ बस आओ सुनो, क्योंकि बहन कहती है आप रोज आना जरूर। कुछ हमें रिजल्ट समझ में नहीं आती कि इसकी रिजल्ट क्या आने वाली है, लेकिन वो कहती है तो हम जाते हैं। तो हम रोज जाते हैं, वो अंदर जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है। थोड़े दिन के बाद जीवन में कोई परिस्थिति आती है, हम कुछ करते नहीं है उसके लिए, लेकिन ऑटोमेटिकली ही एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर देते हैं। ऑटोमेटिकली उस बात को प्यार से शांति से खत्म कर देते हैं। और फिर हम रुक के कहते हैं मैंने इतने आराम से कैसे बात कर लिया आज इस बात के अंदर। हमारी इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ गई थी। इन्फेक्शन आई थी, इन्फेक्शन आई थी आसपास, लेकिन हम पे आज असर नहीं हुआ। कैसे नहीं असर हुआ? इम्यूनिटी बढ़ गई। इम्यूनिटी कैसे बढ़ गई? क्योंकि हम अच्छी डाइट ले रहे थे इतने दिन से। आज हमें अपनी डाइट का रिजल्ट पता चला कि मेरी इम्यूनिटी बढ़ गई। तो वो सुबह का 1 घंटा, वो खुराक, वो खुराक, वो परमात्मा की महावाक्य जो अंदर जाते हैं और फिर परमात्म शक्ति के साथ जो कनेक्शन जुड़ता है, मेडिटेशन। तो ज्ञान और योग दोनों, ज्ञान और योग दोनों। ज्ञान डाइट है, मेडिटेशन एक्सरसाइज है। परमात्मा के साथ एक रिश्ता बन जाता है। सारा दिन परमात्मा साथ का अनुभव होता है। चिंता का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है, डर किसी बात का लगता नहीं है। ये नेचुरल होने लग जाता है सिर्फ वो सुबह का 1 घंटा निकालने से। और सारा दिन में कंटेंट जो आसपास आपको मिल रहा है उससे परहेज कीजिए। आजकल दुनिया में डाइट की बहुत अवेयरनेस हो गई है, ये डाइट वो डाइट, अच्छी बात है। हम अपने शरीर का ध्यान रखने लग गए हैं, लेकिन जितना ध्यान हम शरीर का रख रहे हैं शायद उससे ज्यादा ध्यान हमें मन का रखना पड़ेगा। क्योंकि शरीर का कितना भी ध्यान रख लो, मन का नहीं रखा तो भी शरीर ठीक नहीं रहता है, क्योंकि फिर टेंशन यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाती है। तो मन की डाइट आज देखना सिर्फ कि सारा दिन हम फोन पे क्या देखते हैं। ऐसे ही मैसेज पे मैसेज आता जा रहा है, सब लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, सब लोग देखते जा रहे हैं। एक डाइट चेक करना, कोई ऐसा मैसेज हम पढ़े नहीं, कोई ऐसा वीडियो हम देखे नहीं जो हम बनना चाहते नहीं, जो हम बनना चाहते नहीं। और कोई ऐसा मैसेज किसी को हम फॉरवर्ड करें नहीं। ये भी कर्म अच्छा नहीं होता है कि खुद तो मैं गलत खाऊं खाऊं औरों को भी खिलाऊं, आप भी खाओ गलत, ऐसा तो अच्छी बात नहीं है। ये मैसेज ऐसे फॉरवर्ड नहीं करने चाहिए जो हमारे मन के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है वो। तो चेक करना है सारा दिन हम ऐसे 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 क्या लेते जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे गए ऐसे 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 हम क्या लेते जा रहे हैं। ये हमारा मन का स्वास्थ्य बना रहा है। हमें लगता है हम टाइम पास कर रहे हैं ऐसे, ये टाइम पास नहीं है। इससे ज्यादा हानिकारक कुछ नहीं है, इससे ज्यादा हानिकारक कुछ नहीं है। अगर इसका भी कोई 1 महीना सिर्फ परहेज कर ले कि सिर्फ वो लेना है जो सही है, सिर्फ वो वाला मैसेज पढ़ना है जो जरूरी है, बाकी इधर उधर के फॉरवर्ड बिना देखे डिलीट। अपने फोन पर ऐसे वाले मैसेजेस रखने भी नहीं चाहिए। मैं तो उसी टाइम उसको डिलीट करती हूँ। क्यों? उससे मेरे फोन की भी वाइब्रेशन खराब हो रही है। नहीं तो गलत चीज फोन पे भी नहीं होनी चाहिए। फोन की भी एक ऊर्जा है, सारा दिन हम उस चीज को यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर ऐसा नेगेटिव वीडियो, नेगेटिव जोक, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं,
पढ़ रहे हैं, हंस रहे हैं, दूसरों को भेज रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, खुद की शक्ति घट रही है। हमें लग रहा था हम दूसरों पे हंस रहे थे, हमारी अपनी जीवन एक क्वेश्चन मार्क बन गई इसकी वजह से, क्योंकि हम निंदा कर रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं। तो सिर्फ थोड़े दिन के लिए करके देखिए कि जो आप सुनते, पढ़ते, देखते हैं उस पर स्ट्रिक्ट परहेज कर लीजिए, एकदम स्ट्रिक्ट, कि नो मीन्स नो, मैं ऐसी चीज नहीं पढ़नी है। और कम से कम 1 घंटा रोज सुबह वो खुराक, परमात्मा महावाक्य, वो मेडिटेशन, परमात्मा के साथ कनेक्शन, 1 घंटा सुबह रोज। एक छोटी सी आदत बना लीजिए, सुबह उठते ही सबसे पहले फोन नहीं देखेंगे, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि सुबह ये माइंड जो है ना एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है, बहुत साफ होता है। पहले जब फोन वगैरह नहीं थे, हमने तो वो ईरा देखा है जब फोन नहीं थे। आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं होगा ऐसा जीवन कैसे होगा। आप लोग वो बोलेंगे आप कैसे जीते थे फोन के बिना। तो हम सुबह उठते थे, हमारे पास आसपास कोई फोन नहीं था देखने के लिए, तो हम उसको ऊपर याद कर लेते थे, तो हमारा नजर ऊपर जाती थी, हम उसको शुक्रिया कर लेते थे, हम उसको याद कर लेते थे। फिर हम एक दूसरे को मिलते थे, हम बड़ों के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेते थे। आज हम सबसे पहले फोन देख लेते हैं, उनको सबको मिलते हैं, उसको भी मिलते हैं, लेकिन पहले फोन को मिलते हैं। ये नहीं हम ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पहले फोन बाद में वो सब कुछ, तो उसका प्रभाव घट जाएगा। क्योंकि ब्लॉटिंग पेपर ये वाला पहले दुनिया की बातों से भर गया, दुनिया की बातों से भर गया। फिर तैयार हुए और हमने कहा चलो भगवान को याद करते हैं, बैठे याद करने के लिए, मन इधर उधर जा रहा था। फिर कहते हम बैठे तो थे पूजा करने के लिए, कर ली मैंने, कर ली पूजा। पूजा कहाँ की, सब बाहर किया, सिर्फ विधि पूर्वक किया, और मन इधर उधर जा रहा था उस 10 मिनट के अंदर। और हमने कहा हो गई मेरी पूजा, हो गई आज। ये सब बाहर किया, बाहर किया, मन इधर उधर जा रहा था। क्यों जा रहा था, सुबह सुबह ब्लॉटिंग पेपर पर दुनिया की बातें भर दी थी। वो जो स्थिरता थी, वो जो शांति थी, उसको सुबह सुबह हिला दिया। तो सुबह सुबह सबसे पहले शुक्रिया करें, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, परमात्मा का शुक्रिया, अपने मन और शरीर का शुक्रिया, दोनों स्वस्थ हैं। अपने मन और शरीर का शुक्रिया कि दोनों स्वस्थ हैं, परिवार का शुक्रिया, अपने काम का शुक्रिया। अपने काम का शुक्रिया करना बहुत ज़रूरी होता है। हम बड़ी शिकायतें करते हैं, काम बहुत ज़्यादा है, काम कम है, नौकरी बहुत मुश्किल है, नौकरी चली गई है, पैसे कम है, हमारे पास बहुत कुछ है शिकायत करने के लिए। उस जगह से हमारा धन आता है, उसको बहुत शुक्रिया करना चाहिए। उन लोगों को शुक्रिया करना चाहिए जिनके साथ हम काम करते हैं। प्रकृति का शुक्रिया, रोज नल में पानी आता है, हम शुक्रिया नहीं करते। जिस दिन नहीं आता है हम नाराज अच्छे से हो जाते हैं, ऐसे कैसे पानी नहीं आया, मैंने नहीं आया तो उस दिन शिकायत, लेकिन रोज जब आता है कोई शुक्रिया नहीं, कोई शुक्रिया नहीं उसका। तो शुक्रिया, शुक्रिया एक बहुत हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। जब हम शुक्रिया करेंगे ना, तो सारा दिन कुछ अगर हमारे अनुसार नहीं होगा तो हम शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन यहाँ पर होगी। जो लोग आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, जो आपको तंग कर रहे हैं, जो आपके काम में बाधा डाल रहे हैं, उनका भी शुक्रिया, उनका भी शुक्रिया। आप आए, मेरी शक्ति बढ़ी, मेरी एडजस्ट करने की शक्ति बढ़ी, मेरी झुकने की शक्ति बढ़ी, आपका भी शुक्रिया। आप आते ही ना तो मैं उतना बेंड होकर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते ही नहीं, तो आपका भी शुक्रिया। सबका शुक्रिया करें सुबह सुबह। फिर कुछ देर के लिए बैठकर कुछ श्रेष्ठ संकल्प करें, वो संकल्प जो आप सिद्ध करना चाहते हैं। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, संकल्प से सिद्धि। जो हम सोचेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है। तो कुछ संकल्प बना लीजिए अपने जीवन के लिए जिनको आप सिद्ध करना चाहते हैं। सपोज एग्जाम्पल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, एक संकल्प। अगर आप अपनी विल पावर को बढ़ाना चाहते हैं, और अगर आप परिस्थिति के ऊपर रहना चाहते हैं, परिस्थिति से प्रभावित नहीं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, गुस्सा नहीं, इरिटेशन नहीं, रोना नहीं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं निर्भय आत्मा हूँ, निडर आत्मा हूँ। इस समय चारों तरफ बहुत डर की वाइब्रेशन है,
उसका असर हम पर नहीं होना चाहिए। मैं निर्भय, मैं निडर आत्मा हूँ। कोई भी संस्कार आप अपने अंदर इमर्ज करना चाहें, आप उसको संकल्प में डाल दीजिए। मैं ये हूँ, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। ये हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को आशीर्वाद दे रहे हैं। हम संकल्प कर रहे हैं जो हम सिद्ध करना चाहते हैं, ताकि हम गलती से भी एक संकल्प ये नहीं करेंगे, अगर मुझे हो गया तो। इतना फैला हुआ है, खत्म तो ये हो नहीं रहा, और अगर मुझे हो गया तो, ये संकल्प अच्छा नहीं है। हो गया तो हम उसको भी ठीक कर लेंगे, लेकिन अब सोचे क्यों अभी कि अगर मुझे हो गया तो, अगर मुझे हो गया। होना नहीं है और हमने 6 महीने बिता देने हैं ये सोच के कि अगर मुझे हो गया तो। ये वाइब्रेशन हमें नीचे लेकर आती है। तो मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। अगर कोई भी शरीर में छोटी बड़ी बीमारी है, उसके लिए भी संकल्प कीजिए। सपोज किसी को हाइपरटेंशन है, तो वो संकल्प करेगा मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि अगर हम बार बार बोलेंगे हाई है, तो वो मैसेज जाता है बॉडी को, और वो हाई ही रहता है, और हाई भी हो सकता है। तो नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। अगर शरीर के किसी अंग में कोई दर्द वर्द है, ये वाला अंग बिल्कुल ठीक है, उस अंग को बहुत प्यार से उससे बात कीजिए, उसको बहुत अच्छी वाइब्रेशन दीजिए, बजाय कि ये दुखता ही रहता है, मैं चल ही नहीं सकती, कैसा मेरा घुटना हो गया है। ऐसा करेंगे तो वो और तंग करेगा। उसके साथ भी हमारा एक रिश्ता बनता है, शरीर के अंग के साथ। तो संकल्प स्वास्थ्य का, कि मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है, हमेशा रहेगा। एक संकल्प जो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी और हमेशा, परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का कवच मेरे चारों तरफ है। इसको ड्रॉ कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। डिवाइन लाइट, हाईएस्ट वाइब्रेशन का सर्कल मेरे चारों तरफ है। कुछ भी इसके अंदर घुस नहीं सकता है, कोई लो वाइब्रेशनल एनर्जी इसमें नहीं घुस सकती है। मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। फिर ऐसा सर्कल अपने परिवार के अराउंड ड्रॉ कीजिए। मेरे परिवार का हर सदस्य परमात्मा की दुआओं से सुरक्षित है। फिर ऐसा सर्कल अपने काम के चारों तरफ ड्रॉ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ महीनों में हम अपने काम के लिए बहुत कुछ गलत गलत बोल चुके हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ ठीक नहीं हो रहा, कैसे होगा। ऐसा बोलेंगे तो वही सिद्ध हो जाएगा, पर हम कहते हैं वही तो है, फिर वही तो सोचेंगे। नहीं, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है। परमात्मा की शक्तियां मेरे काम के चारों तरफ सुरक्षा कवच है। मेरा काम, मेरा बिजनेस, मेरी दुकान, मेरी नौकरी सुरक्षित है, सुरक्षित है। इट इज सेफ। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग चली गई तो, कम हो गया तो, नुकसान, सुरक्षित है। सफलता मेरे लिए निश्चित है, सफलता मेरे लिए निश्चित है। मेरे पास भरपूर है। हमने बहुत कमी की बात की है पिछले कुछ महीनों में, कम है, कम है। मेरे पास भरपूर है। संकल्प से सिद्धि होती है। फिर लास्ट संकल्प, सृष्टि के चारों तरफ सुरक्षा कवच दीजिए। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच सृष्टि के चारों तरफ है। 8-10 संकल्प कितने इजी हैं। शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं निर्भय आत्मा हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है, आई एम सेफ। परिवार के चारों तरफ है, मेरे काम के चारों तरफ है, मेरा काम सुरक्षित है। सफलता मेरे लिए निश्चित है, मेरे पास भरपूर है। और परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच सृष्टि के चारों तरफ है। मेरी दुनिया सुरक्षित है। आप इसमें कोई भी अपना और संकल्प डाल सकते हैं। मेरे रिश्ते बहुत ब्यूटीफुल है, रिस्पेक्ट की फाउंडेशन पर खड़े हैं। मेरा परिवार यूनाइटेड है। सब बिखर भी रहा होगा ना तो जुड़ जाएगा। बिखरते हुए का संकल्प नहीं करना देखकर, जुड़े हुए का संकल्प करेंगे और संकल्प से सिद्धि हो जाएगी, संकल्प से सृष्टि बन जाएगी। मेरा परिवार यूनाइटेड है, जुड़ा हुआ है और हमेशा रहेगा। एकता और सम्मान की फाउंडेशन पर हम खड़े हैं।
ऐसे कुछ संकल्प बना लीजिए सारे। परमात्मा की मैं संतान हूँ, कल्याणकारी, दाता, सबको देने वाली, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। सुबह सुबह जब हम ऐसे संकल्प क्रिएट कर लेते हैं तो हमारी वाइब्रेशन यहाँ पहुँच जाती है। फिर कम से कम आधा एक घंटा ज्ञान अंदर बन रहा है, खुराक खुराक। आप जैसे ही लॉकडाउन पूरा होगा तो सेंटर पर आइएगा, मेडिटेशन कैसे करनी है उसकी विधि को सीखिएगा और परमात्म ज्ञान सुबह 1 घंटा भर कर सिर्फ 1 महीना करके देखिएगा। 1 महीना 1 घंटा दीजिएगा सिर्फ, और आपको 1 महीने में ही अपना इम्यूनिटी सिस्टम चेंज होता हुआ दिखाई दे जाएगा और फिर तो जीवन ही बदल जाएगा। लेकिन 1 घंटा एक्सपेरिमेंट करने के लिए चाहिए, 1 महीने के लिए सिर्फ। तो ये सुबह का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रात को सोने से पहले आखिरी घंटा। मन की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है हमारी नींद सही नहीं है। हमें लगता है हम तो सही सोते हैं, लेकिन हमारी नींद सही नहीं है, क्योंकि हम सोने तक कुछ ना कुछ अपने फोन और कंप्यूटर पर कर रहे हैं। हम किसी से अपने काम के बारे में बात कर रहे हैं, तो सोने तक भी हम काम करते रहते हैं। नींद, आंख बंद होने तक भी कोई ईमेल आया, कोई मैसेज आया, अच्छा नहीं आया, बंद कर दिया, लेट गए। 10 मिनट नींद नहीं आई, 10 मिनट बाद फिर उठते हैं, फिर फोन को उठाते हैं, कोई मैसेज आया, कोई ईमेल आया, ऐसे करते करते सो जाते हैं। बाई चांस किसी दिन 2-3 बजे रात को नींद खुल गई, तब भी देख लेते हैं, कोई मैसेज आया, कोई ईमेल आया। ये माइंड है, ये थक जाता है ऐसे। हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर अच्छा सोना है तो हमें सोने से 2 घंटा पहले अपने काम से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। जैसे हम काम फोन से पहले किया करते थे, अब हमें लगे ओह ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम तो पीछे रह जाएंगे। हमें ऐसा लगता है, हम पीछे नहीं रह जाएंगे, हम आत्मिक शक्ति में बहुत आगे निकल जाएंगे। अपना ध्यान रखें और आपके साथ जो काम करते हैं उनका ध्यान रखें। 10 बजे रात को सोने के लिए 8 बजे के बाद मन से, काम से डिस्कनेक्ट होना चाहिए। तब मन की गति धीमी होगी ना, तब वो अच्छा सो जाएगा। इतना फास्ट चलता हुआ मन के साथ नहीं सो सकते हैं हम। और फिर सोने से 1 घंटा पहले मीडिया, सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट करें। फोन देखकर नहीं सो सकते हम। फिर सोने से 15 मिनट पहले फिर ज्ञान अंदर भरें। लास्ट थॉट्स, परमात्मा से बात करें, मेडिटेशन करें और फिर वो 10 संकल्प, अपनी आखिरी संकल्प रखें, आंख बंद कर लें और वो सोचते सोचते सो जाएं। जो लास्ट थॉट होगी 6 घंटा वही संकल्प चलेंगे। तो ये सुबह का 1 घंटा, रात का 1 घंटा परिवार के साथ बैठे, हंसे खेले, म्यूजिक सुने, भजन सुने, किताब पढ़ें कोई अच्छी, कुछ लिखें, कुछ हॉबी। लेकिन फोन, टीवी, काम ये नहीं, सोने से पहले नहीं। ये हमारा डिप्लीटर है। सीरियल पे सीरियल हम देखते जाते हैं, उसमें कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई चीट कर रहा है, कोई घर टूट रहे हैं। पहले वो टीवी पे हो रहा था, अब वो घरों में होने लग गया, क्योंकि हर घर में वो वाइब्रेशन आ रही थी ना, तो वो घरों में होने लग गया, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। तो ये 2 समय बहुत 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 इम्पोर्टेंट है अपने मन का स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए। और लास्ट चीज है हमारा अन्न। आप सब सात्विक अन्न खाते हैं, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन सात्विक अन्न को सात्विक मन की स्थिति में बनाया जाना चाहिए। अगर आपको शक्तिशाली मन चाहिए तो घर का खाना खाया कीजिए। शक्तिशाली शरीर के लिए तो घर का खाना खाना ही चाहिए, लेकिन शक्तिशाली मन के लिए भी घर का खाना खाना चाहिए। हम बहुत ज्यादा बाहर का खाते हैं। वो बाहर का जो खाना है, किसने बनाया, किस मन की स्थिति में बनाया, प्रॉफिट के लिए बनाया, वो हमारे मन के लिए कैसे अच्छा हो सकता है। मजबूरी, कभी ट्रैवल कर रहे, कुछ तो खाया, अलग बात, लेकिन ऐसे ही बाहर का खाते रहे, ऑर्डर किया खा लिया, ऑर्डर किया खा लिया। इसने हमारे मन पर बहुत प्रभाव डाला है, बहुत प्रभाव डाला है। जैसा अन्न वैसा मन है, और जैसा बनाने वाले का मन है वैसा वो अन्न है, और वैसे अन्न से हमारा मन है। तो आपके लिए जिसने बनाया, जिस मन की स्थिति में बनाया, उसका डायरेक्ट प्रभाव आपके मन पर पड़ना ही है। जैसा अन्न वैसा मन,
जैसा पानी वैसी वाणी, इस 2 लाइनों को बहुत अच्छे से अपने जीवन का हिस्सा बना लेना है। रसोई में परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा की गीत बजते रहें, भजन बजे रसोई में, ताकि सब चीज के अंदर हाई एनर्जी वाइब्रेशन चली जाए। घर में मर्यादा बना लें कि खाना खाते समय कोई फोन और टीवी नहीं होगा, कोई फोन और टीवी नहीं जब खाना खा रहे हैं। हम करेंगे तब बच्चे करेंगे आगे। और खाना खाने से पहले परमात्मा को याद करके अपने वो संकल्प जो सिद्ध करना चाहते हैं उसको एक बार दोहरा लीजिए। 10-20 सेकेंड ही लगेंगे। अगर आप इसको जल्दी सिद्ध करना चाहते हो तो हर खाने से पहले कीजिए और हर ग्लास पानी पीने से पहले भी कीजिए, हर कप चाय कॉफी पीने से पहले भी कीजिए, क्योंकि जो हम खाएंगे पिएंगे वो संकल्पों को अब्सॉर्ब कर लेगा और वो हमारी मन की स्थिति बन जाएगी और वो ही हमारा भाग्य बन जाएगा। तो सुबह संकल्प करें, रात को करें, खाना खाने से पहले करें, पानी पीने से पहले करें, तो दिन में 10-12 बार हो जाता है। और अगर दिन में 10-12 बार उस संकल्प को दोहराया तो 10-15 दिन के अंदर मन की स्थिति परिवर्तन हो जाएगी और वो सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। मन का ध्यान रखना बहुत ईजी है, उससे ज्यादा ईजी कुछ भी नहीं है। हम सब ने बहुत मुश्किल मुश्किल काम कर लिए हैं, अब कुछ ईजी वाले काम शुरू करते हैं जो सबसे सहज होते हैं। और जब ये लॉकडाउन पूरा होगा तो आप जरूर सेंटर पर आइएगा और मेडिटेशन सीखिएगा। और अगर उससे पहले करना चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं। आप संजय भाई के साथ डिस्कस करके 5-6 दिन 1 घंटे का समय फिक्स कीजिए। जैसे आज 1 घंटे का किया तो 5-6 दिन 1 घंटे का समय फिक्स कीजिए, तो दीदी आपको ऑनलाइन ये राजयोग मेडिटेशन का कोर्स कराएंगी और मेडिटेशन भी सिखा सकते हैं। और फिर जब लॉकडाउन पूरा होगा तो आप सेंटर पर जरूर आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी, बहुत अच्छी तरह आपने एकदम समझाया, एकदम सरल वे में। सही बात की आपने 5 फोल्डर की और जो सद्गुणी आत्मा की, तो बहुत सही थी। और संकल्प सिद्धि के बारे में जो बोला, तो मैं समझता हूँ कि अभी सभी को हमें ये अपना लेना चाहिए और सही बात है। तो ओम शांति। अरे प्रशांत भाई। या या यस। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। प्रणाम। श्री उपनगर लाड संस्था के हमारे 3 उद्देश्य है, सेवा, साकार और विकास। और आज ये जो आपने हमें मार्गदर्शन दिया है, कई नई परिभाषा हमें जानने को मिली है। चाहे वो संस्कार हो या अपने जीवन के बारे में है या माइंड की जो परिभाषा है, हमें कुछ सही तरह जानते नहीं थे, इसका आज मार्गदर्शन मिला है हमें। और शायद ये सब जो सेवा की रूप में हमें जो आज प्रवचन के हिसाब से हमें मार्गदर्शन मिला है, एक नई दिशा मिली है, राह मिली है। तो और वो राह जानने के लिए आज जो सभी सभ्यों ने, आज तकरीबन 250 से ज़्यादा सभ्यों ने पार्टिसिपेट करके जो सहकार दिया है इस कार्यक्रम में, आशा है कि हम सब अपने जीवन को एक विकास की नई ओर लेके जाएंगे और कुछ संकल्प जरूर करेंगे। जैसे आपने अच्छे सुझाव रखे हैं कि सुबह उठ के पहले मोबाइल नहीं देखना, चाहे आज के ज़माने में एक डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन ज़रूर से अपना सकते हैं। और आपने जो अलग अलग 5 फोल्डर हमें दिखाए, जो हमारे पास थे वो हम जानते नहीं थे, वो आज जान पाए। सही में एक नई दिशा और राह के लिए तो इस संस्था की तरफ से हम हृदयपूर्वक दीदी आपका आभार मानते हैं। आपकी संस्था का हुआ सभी जो कार्यक्रम आपके चल रहे हैं उसको हम जरूर से पार्टिसिपेट करने चाहेंगे। ऑनलाइन मेडिटेशन के आपका जो प्रोग्राम है, उन्होंने दीदी का मैं जरा नंबर सभी सबको को शेयर करना चाहता हूँ। 9870500537। आई रिपीट 9870500537। ये ऑनलाइन मेडिटेशन के लिए, आपके प्रोग्राम के लिए हम हमारे सभी यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप से। और
मयूरी बहन, आपने एक अच्छी तरह इनका परिचय दिया, लेकिन आज हमारे सबके मन में एक अच्छी सोच आज आ गई है। थैंक यू मयूरी बहन। और शिल्पा भाभी, आपने एक कार्यक्रम के लिए जो एक प्रयत्न किया संस्था के सभ्यों के लिए, सच में इस संस्था विकास की ओर आएगी। आप सबका, सभ्यों मेंबर का और शिवानी दीदी, आप सबका मैं हृदयपूर्वक आभार मानता हूँ। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम बहुत शांति। बहुत शुक्रिया। ओम शांति। Are we going to allow members to ask any question to Shivani? Yeah, if somebody wants to ask. अगर और किसी को कोई सवाल नहीं है तो मुझे एक सवाल है, मैं शिवानी दीदी को पूछना चाहूंगा। शिवानी दीदी, मेरी कमजोरी है, मैं स्वीट नहीं छोड़ पाता हूँ, और मैंने सुना हुआ है कि और मैंने देखा भी है कि जब मैं काम करता हूँ तब मुझे सबसे ज्यादा कुछ ना कुछ स्वीट या कुछ ना कुछ टाइप का खाने की इच्छा होती है। तो हाउ डू वी कंट्रोल दैट? We don't need to control it. We just need to first stop saying that मैं स्वीट के बिना रह नहीं सकता हूँ। ये संकल्प है, सिर्फ संकल्प बदलिएगा। अभी कुछ भी मत कीजिएगा बाहर, संकल्प बदलिएगा सिर्फ, और सिर्फ ये संकल्प कीजिएगा, मैं वो ही खाता हूँ जो मेरे लिए सही है। सही है, मैं वो ही खाता हूँ और उतना ही खाता हूँ जो मेरे लिए सही है। क्यों? क्योंकि मैं अपने शरीर का मालिक हूँ। मैं मालिक हूँ, मैं चूज करता हूँ क्या खाना है, कितना खाना है, कितने बजे खाना है, सब कुछ मेरी चॉइस से है। मैं गुलाम नहीं हूँ अपनी जबान का, मैं गुलाम नहीं हूँ खाने का। वो तो पक्की बात है, हम नहीं हैं, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं ना तो वो हम बनते जाते हैं। तो मैं मालिक हूँ इस शरीर का, मैं चूज करता हूँ कब खाना है, कितना खाना है और कितने बजे खाना है। बस आप थोड़े दिन सिर्फ अपना ये संकल्प कीजिए और फिर उसको विजुअलाइज कीजिए कि पूरे दिन में आप चूज कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। नथिंग इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन। आप चूज कर रहे हैं कब खाना है, कितना खाना है या बिल्कुल नहीं खाना है, आप चूज कर रहे हैं। आप एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे ना 4-5 दिन, वो विल पावर सिर्फ मीठा खाने में नहीं आएगी, वो विल पावर और चीजों के अंदर भी आ जाएगी। लेकिन जब हम ये चीज कहते हैं ना कि मैं ये नहीं कर पाता हूँ, तो हमारी विल पावर घटती है। हमें जीवन में किसी भी चीज के लिए ये नहीं कहना चाहिए मैं इसके बिना रह नहीं सकता। ये लाइन एक्चुअली सही नहीं है कि मैं इसके बिना, मतलब मैं ये चीज, कई लोग हम कहते हैं मैं सुबह की चाय के बिना रह नहीं सकता। सुबह उठना है, चाय चाहिए, चाय पी सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहना मैं इसके बिना रह नहीं सकता। मतलब अपने आप को उस चीज का गुलाम नहीं बनाना है। मैं फोन के बिना रह नहीं सकता, मैं इंटरनेट के बिना रह नहीं सकता। फोन यूज करो, इंटरनेट यूज करो, साधनों को यूज करो, साधनों के गुलाम नहीं। साधनों के गुलाम नहीं। गुलाम बनते ना तब अपनी मानसिक शक्ति फिर घटने लगती है। मीठा खाना है, मीठा खाओ, लेकिन चूज करके कब खाना है। एक ही खाना है, दूसरा नहीं उठाना है फिर, या आधा खाना है फिर पूरा नहीं खाना, ये चूज करके। तो फिर वो सारी चीजें हमारे पास है हमारे यूज के लिए, लेकिन वो हम पर ओवर पावर नहीं कर सकती। तब स्वराज्य, स्वराज्य है ये हमारा राज्य है, इस पर हम राज्य करते हैं, हम स्वराज्य है। तो रोज कहिएगा मैं स्वराज्य आत्मा हूँ, मैं मालिक आत्मा हूँ, मैं चूज करती हूँ। और आज के बाद कभी नहीं कहना मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मेरा मीठा के बिना, ये लाइन ही खत्म कर देते हैं, तो संकल्प से सिद्धि हो जाएगी। अच्छा दीदी, कोई ब्रॉडकास्ट ग्रुप है आपका, कोई पॉजिटिव मैसेज एवरीडे मिले, पॉजिटिव थॉट्स के लिए व्हाट्सएप? हाँ, संजय भाई भेजेंगे ना आपको। संजय भाई हैं अभी जूम पर। संजय भाई आप हैं क्या इधर? थे तो सही स्टार्टिंग में। शायद अनम्यूट, मैं अनम्यूट करने का संजय भाई सबको मैसेज भेजते हैं रोज, बहुत अच्छा मैसेज भेजते हैं। हाँ, तो अगर आप उनको अपना नंबर देंगे, या वो आप में से एक जने को दे सकते हैं और आप सबको दे सकते हैं, जैसा आपको। ये हमारा भी ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, तो हम उसमें कर सकते हैं वेरी पॉजिटिव गुड। थॉट्स, तो पॉजिटिव संजय मैसेज। भाई आप में से एक को दे देंगे, आप जी सब जी कीजिएगा। we, हाँ we will संजय do भाई it. आप यहाँ है ना? हाँ संजय Yes, भाई। yes, I'm there, Yes, yes, and yes. we'll do this for them, no Yeah. problem. So we do, संजय भाई, दीदी मेरा एक क्वेश्चन है। एक मिनट संजय भाई, we will do the message also, and हम हाँ जी। राजयोग का कोर्स भी करेंगे। Sure. हाँ जी, we can start from tomorrow itself if they want. Yeah. Okay, Ashwin bhai, can you put the number of our ID and password of Shagun?
Zoom ID and password. Ashwin bhai, if you're there. कल से कोर्स कर सकते हैं संजय हाँ भाई। जी, हाँ जी, मैं बोल रही हूँ ताकि कल शाम को 7 से 8 हाँ ऑनलाइन जी, का रखा गया है, तो जिनको भी ठीक है, तो 2 नंबर दे दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। राइट, फाइन। अश्विन भाई जरा नंबर वो रिपीट कर दीजिए स्क्रीन पर वापस। चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ, चैट बॉक्स में डाल दीजिए, दैट इज फाइन। अदरवाइज विल गिव इट टू द कंसर्न पर्सन आफ्टर द प्रोग्राम। ठीक है, फाइन। आप कुंती बहन को दे दीजिए, मैं ले लूंगा कुंती बहन से। इट इज देयर, अभी स्क्रीन पे आया है, and the password is Shagun, SHAGUN. So whosoever wants to join can join from tomorrow. ओके, ठीक है, Fine. थैंक यू। अच्छा, ये जो नंबर आया था ये आईडी है क्या जूम का? Yeah. ओके, गुड। सुबह शाम को 7 से 8। हाँ जी, शाम को 7 से 8 बजे कल से 7 दिन जी। के लिए। और नंबर जो 022 चैट बॉक्स में डाला है वो जूम का आईडी है और शगुन पासवर्ड है। ठीक है। सुबह के लिए संजय भाई, सुबह के लिए हाँ पूछ जी। रहा है कोई? हाँ जी, कुंती बहन, कैन वी डू इन द मॉर्निंग? सुबह भी कर सकते हैं कल से? रजिस्ट्रेशन में अगर संख्या आएगी तो करेंगे। हाँ, अच्छा, तो ठीक है। अगर आप सब मिलके राय करके अपना प्रेफर्ड टाइम दे दीजिए, दिन दे दीजिए, तो दीदी आपके लिए स्पेसिफिक रखेंगे कि सुबह चाहिए कितने लोग आएंगे, सुबह शाम को चाहिए कितने आएंगे, और सिर्फ आपके ही ग्रुप के लिए भी करा सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी आप लोग आपस में राय करके ना, तो दीदी को नंबर दे देंगे, तो दीदी फिक्स कर देंगे फिर ऐसे। ठीक है, बात कर लेंगे। Thank you so much. Didi had one question. Thanks Haan ji, for your sure. wonderful discourse. You mentioned about sattva nature of the 7 facets of the mind, and there is also the Tatas Lakshan of Atma, like Sat, Chit and Anand. So Anand is definitely understand as a bliss, but you also mentioned Sukh. So isn't it bit like how do we reconcile? Because Sukh is generally temporal and related with an object. Well, so I was just trying to reconcile that about the 7-fold nature, and how do you reconcile with that with the happiness part of it? Right. Sukh is not related to objects. What is related to objects is actually comfort. अभी हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो हमें सुख नहीं देती है, वो हमें आराम देती है, वो हमें आराम देती है। हम उसी कुर्सी पर बैठ के दुखी भी हो सकते हैं, हम उसी कुर्सी पे बैठ के दुखी भी तो हो सकते हैं ना। तो ये हम कहते हैं इसको सुख के साधन। ये सुख के साधन नहीं, ये आराम के साधन है, क्योंकि ये फिजिकल चीज है। फिजिकल चीज हमेशा हमें आराम दे सकती है। हमारी गाड़ी आराम देती है, हमारा घर आराम देता है, हमारा बिस्तर हमें आराम, ये सब चीजें हमें आराम देते हैं। जितने महंगे और बड़े हम खरीदते हैं हमें थोड़ा सा आराम और ज्यादा मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सुख मन को उतना ज्यादा मिलता है। सुख चीजों से नहीं होता है, सुख हमारा सोचने का तरीका है। अगर हम हर परिस्थिति में सही सोचते हैं तो मन हमेशा सुख अनुभव करेगा, नहीं तो दुख अनुभव करेगा, वो चीजों पे निर्भर नहीं होगा। तो जब आप कल से कोर्स करेंगे ना, वो इसीलिए कल से कोर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज, क्योंकि जो हमने अभी थोड़ा सा शॉर्ट में किया वो 7 दिन में अच्छे से डिटेल में कवर हो जाएगा, और वो मेडिटेशन के एक्सपीरियंस भी होगा। इसलिए आप इसमें राय करके वो 2 टाइम फिक्स कर लीजिए कि सुबह किनको करना है और शाम को किनको करना है। वैसे सुबह का समय अच्छा होता है, सुबह का समय अच्छा होता है, बट फिर भी अगर काम की वजह से सुबह नहीं कर सकते तो शाम को करना चाहिए। बट आइडियली सुबह का समय इज बेटर। ब्लॉटिंग पेपर इज एब्सोल्युटली क्लीन, वातावरण भी शुद्ध होता है, तो सुबह का समय इज फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस शाम का समय। Shivani Ben, the Zoom ID is the contact number of the center. Yes, तो 022 वाला ना? Yeah, 022. हाँ जी। So they can call on that number and register also if they want. Okay. Yeah, but I think even आपस में, क्योंकि संजय भाई उनका ब्रॉडकास्ट ग्रुप भी है ना, तो आपस में भी आप डिसाइड करके आप डायरेक्टली भी दीदी को एक जना बता सकता है कि हमारे ग्रुप में से हम इतने लोग सुबह कर रहे हैं, इतने लोग शाम को कर रहे हैं, और हम कब शुरू करना चाहते हैं।
आप एक जी। महीना भी बता दे तो वो भी हो जाएगा, और हर एक इंडिविजुअली भेज दे तो भी। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी हेलो बहन। दीदी। हाँ जी बताइए। हाँ, सुबह का टाइम क्या होगा मैम? 7 से 8 7 to 8। ऐसा है ना, ऐसा है कि ये कोर्स सिर्फ आपके लिए कराया जा रहा है। आप 7 से 8 करना चाहें तो 7 से 8, आप 6 से 7 करना चाहें तो 6 से 7, आप 8 से 9 करना चाहें तो 8 से 9, आप 4 से 5 सुबह करना चाहें तो 4 से 5। तो ये कंप्लीट आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। परमात्मा ज्ञान दे रहा है, बहनें सेवा पर हमेशा हाजिर हैं, हमें सिर्फ अपना वो 1 घंटा निकालना है। तो जो भी दिन, जो भी टाइम वो आपके लिए हो रहा है, दीदी हमेशा आपके लिए वो एडजस्ट करके चेंज कर देंगे, लेकिन आप आपस में राय करके डिसाइड कर लीजिएगा। Correct. Neela Bhabhi, you have a question? I think after this question will wind up. Let it be the last question. Sure. Yeah. मुझे सिर्फ दीदी आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत अच्छी बात आप सुनी। मुझे ये संकल्प से सिद्धि है, आप हमेशा बताते हैं। संकल्प तो हम बहुत सारे करते हैं, जैसे विंटर सीजन आती है ना, हम संकल्प करते हैं हम अभी मॉर्निंग वॉक को जाएंगे, नए शूज लेके आते हैं, टी शर्ट लेके आते हैं, थोड़ा दिन बहुत अच्छा चलता है, फिर धीरे 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 नॉर्मल आ जाता है। तो वो जो संकल्प तो कर लेते हैं हम लोग, पर ज्यादा टिकता नहीं है, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि आपने सिर्फ एक बार संकल्प किया और सोचा वो हो जाएगा, वो नहीं होगा। आज जितनी बार हमने किया ना, वो सुबह उठते ही पहला संकल्प, उसको विजुअलाइज करना, रात को सोने से पहले वो आखिरी संकल्प, सारा दिन में हर 1 घंटे के बाद रुककर वो संकल्प, भोजन से पहले वो संकल्प, पानी से पहले वो संकल्प बहुत बार लेना पड़ता है, फिर वो सिद्ध हो जाएगा। मतलब यहाँ पर वो संकल्प पक्का हो जाना चाहिए, तब वो सिद्ध हो जाएगा। और साथ साथ आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है परमात्मा के ज्ञान और योग से। लोगों के लिए हम कहते हैं ना, इनके पास सिद्धि है, ये जो सोचते हैं बोलते हैं वो हो जाता है, वो आत्मा शक्तिशाली होती है। वो नेगेटिव सोचते हैं तो वो भी हो जाता है, पॉजिटिव सोचते हैं तो भी हो जाता है, क्योंकि आत्मा शक्तिशाली है। तो रोज सुबह वो खुराक लेंगे ना ज्ञान की, और मेडिटेशन करेंगे, आप जो सोचेंगे, जो डिसीजन करेंगे, आप कर सकेंगे। वो विल पावर बढ़ जाएगी। वो आप ये 1 हफ्ते के बाद और एक्सपेरिमेंट करके देखना, फिर और 1 हफ्ता करना, फिर आप देखना इस सर्दियों से पहले तो आप अभी से शुरू कर देंगे अपनी डेली वॉक। विंटर की वेट करने की जरूरत है। थैंक यू। Thank you. So Om Shanti. Thank you. Om Shanti. ओम शांति। थैंक यू कुंती दीदी। ओम शांति। Thank you. ओम शांति दीदी। ओम शांति। Shall I close the meeting? हाँ Yeah. Om Shanti. Thank you very much. Thank you. Thank you everyone.